Chalo bhai, good morning. We are here to discuss world history. All those who have attended or seen the last classes must be aware that we have discussed or we have started from American Revolution. American Revolution से शुरू किया था हमने. तो we have done American Revolution, French Revolution, Age of Napoleon. Then we have done something of Chartism. Then German unification, Italian unification. Now we are here, for World War I. Now we are here to discuss something which is post World War I. First, let me read out the questions we are going to discuss. पहले एक बार questions read out कर देता हूँ for our ease, कि आपको idea रहे what we have to discuss. तो question number 1. Amongst many factors, question number 1 है, it is after World War I. Amongst many factors, the Great Depression of 1929 played a major role in the rise of fascism in Germany. Amongst many factor, fascism की rise के बहुत सारे factor थे. तो among many, the Great Depression of 1929 played a major role in the rise of fascism. ये first question था. Second देखें. League of Nations. You must have heard or read about League of Nations. Something which was made after World War I as a tool of new diplomacy. League of Nations, an organization with turbulent yet hopeful start. Start was turbulent but hopeful. Yet a farcical end. Farce होता है something which is ironic and laughable. So it had a farcical end. Second question. Third. आसानी है third तो. It was USSR which gained most out of World War II. And it was USSR which lost most in it. USSR gained most out of World War II. USSR lost most in World War II. Line थोड़ी contradictory है, that's why the question. Fourth, as it was for Europe, Marshall Plan was for USA herself. एक Marshall Plan आया था World War II के बाद. तो as it was for Europe, it was also for America. Marshall Plan, did United States launched Marshall Plans for herself or for Europe? The question is, as it was for Europe, Marshall Plan was for USA herself. Fifth question, पांचवा सवाल देखें. The hopes of early 1970s. We are now in Cold War. The hopes of early 1970s of calm in Cold War. Sorry. The hopes of early 1970s of calm in Cold War turned into new heights of rivalry a decade later. 1970 के शुरू में, in start of 1970s or by the mid of 1970s, there was a hope of easing of Cold War. Cold War के ease होने के hope थे. However, when 1970s ended or 1980s started, there was a new rise in tensions. इतनी टेंशन हाई थी कि रोनाल्ड रीगन came with a promise that Cold War will not be ended but will be won. Cold War हमारी और USSR की सहमति, it will not end in our and USSR's friendship or in some tie or in some friendly negotiation. We have to win the war. So Ronald Reagan's 1980 election was on this issue. तो ये आगे देखेंगे कि how Jimmy Carter and Ronald Reagan, they have given new heights to Cold War, and how Richard Nixon and Gerald Ford, they were about to end the Cold War. Sixth question. Communism.
a theory which revolutionized the political thinking forever. Communism, a theory which revolutionized the political thinking forever, and an ideology which gives solution of all social ills, failed so miserably almost everywhere. This question I've tried to give, which relates to our present times, when this new right-wing government will like to ask some ills of communism. Because communists are, or communism is the antithesis of this right wing. So therefore communism failed so miserably everywhere. Although I could have given critically examine, but as you can see in the notes which you have downloaded, नीचे आपने download कर लिया होगा शायद, कि the answer is, the question is elaborate, not examine. आपको elaborate करना है. चलो फर्स्ट देखते हैं. Amongst many factors, the Great Depression of 1929 played a major role in the rise of fascism. First, let's understand what is fascism. ये जो fascism लिखा हुआ है, ये चीज क्या है? तो एक, there was a concept which appeared in 19th century called Darwinism. एक 19th century में concept था Darwinism, which is true even to this day. It's the foundation. Today, why we cannot end the coronavirus? ये जो novel coronavirus आया है, why the vaccine is so difficult? Because the virus evolves over time. हर दिन वायरस म्यूटेट करके अपने आप को अडेप्ट कर रहा है. इट्स अडेप्टिंग इटसेल्फ एज वी अडेप्ट आवरसेल्फ. जैसे हम अडेप्ट करते हैं. Soon we will have some adaptations in our body as we have lost our tail, as we have lost our third eyelid. उसी तरह human body, every organic thing evolve. And the basis of this evolution, इस evolution का basis है the conflict. The theory of conflict. Darwinism says the conflict is between two species. Two species conflict. Frederick Engels and Karl Marx, they are very much impressed by this Darwinism. When you will read their letters, so they write each other that how Darwinism is something very path-breaking and something which is very enlightening. Then came communism. Last class में आपको समझा चुका हूं मैं, communism is Marxism, Leninism. What is communism? तो communism can be described in various ways. जैसे communism is a part of socialism. तो communism is Marxism, Leninism. This communism says the conflict is between two classes. ये दो क्लास कंफ्लिक्ट करती हैं. तो अकॉर्डिंग टू कम्युनिज्म, वंस देयर वाज अ वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग वाज इन सरप्लस. सब कुछ बहुत था. मैन नेवर नीडेड टू हैव एनी कंफ्लिक्ट. मार्क्स कॉल्ड इट प्रिमिटिव कम्युनिज्म. बहुत पहले, बहुत साल पहले, इन स्टोन एज और इवन बिफोर दैट, बिफोर नियोलिथिक एज, देयर वाज प्रिमिटिव कम्युनिज्म. इफ आई हैव टू ईट मैंगो, so I'll not conflict with you. I'll search some mango tree and I'll get the mango there. अगर मुझे खेती, खैर तब खेती होती नहीं थी. It was not the time of agriculture. तो example is wrong, but still I'm telling you. If you are doing some farming or if you are taking some tree produce, I need not to grab your land. I'll go somewhere else. I'll find the enough land. तो सब कुछ enough है. Marx called it primitive communism. Because vision of Marx is कि फ्यूचर में कम्युनिज्म यही कंडीशन लेके आएगा, when everything will have everything for their need. After primitive communism, the world moved to slave mode of production, where slaves and their masters and slaves, they had the
conflict. Later came the feudal mode of production, where feudal lords and their serfs, they had the conflict. Then came capitalist mode of production, where the capitalist class, the bourgeois, and the labor class or proletariat, they have made the conflict. इनका conflict चल रहा है. आगे आने वाले समय में from this conflict we will move into a classless society. ये communism है, ये भी एक conflict है. Now, after German and Italian unification, two nations appeared. Italy तो फिर भी चलो, it was a simple nation. Germany was a behemoth created in the midst of the continent. Continent के बीच में बहुत great power emerge हुई. Its name was Germany. आपने last class में इसका map ऐसे देखा ही होगा. तो whatever we have described, and when you will compare the France, तो ऐसे करके कुछ France है. Now Germany twice the size, thrice the population. However, Germany has seen, अच्छा 1873 to 98, ध्यान से सुनिए, 1873 to 98. It's a time of around 25 years. In world history, it is called the Long Depression. The Long Depression. देखो भाई, every economic crisis brings tensions with it, brings competition with it, brings a lot of unrest with it. अगर ये शायद फोटो के नीचे दब गया तो it is 1873 to 98. The Long Depression. Now this Long Depression was resulted by the overproduction of Germany especially and Italy. United States ने भी अपना civil war खत्म कर लिया था. United States was also emerging out in its gilded age, जो reformation खत्म करके उनकी एक age है. Pre-World War age of United States is called gilded age. World War I के पहले की age को USA में कहते हैं gilded age, चमकती हुई age. In United Kingdom or in Britain, it's called Victorian age. The age of capitalism, free market, liberty, Victorian liberalism, civilizing mission, the white man's burden. ये उसको ऐसे glorious तरीके से देखते हैं Britain. In France, the age before World War I is known as बैलेपो. बैलेपो, बैले एक डांस होता है, बैले डांस. तो बैलेपो, वेयर, अब मैं बहुत ज्यादा डिस्क्राइब इसको नहीं करना चाहता, बट स्टिल दीज आर द एजेस. नाउ दीज एजेस, ये जो एक आपने, जैसे हम एक अपनी एज बताते हैं, 90s किड, एक इंडिया में आजकल बड़ा फेमस चला हुआ है, यू मस्ट हैव हर्ड 90s किड. तो हुआ यह कि 1990 द इकोनॉमी ओपनड इटसेल्फ, न्यू चैनल्स अपीयर्ड, नए नए प्रोडक्ट्स आते थे. दूरदर्शन एंड दीज चैनल्स स्टार्टेड क्रिएटिंग गुड कंटेंट, चित्रहार, और दीज आर द सिंबल्स ऑफ आवर 90s एज और 90s किड. वैसे ही द फ्रूट्स ऑफ कैपिटलिज्म गेव दीज रोमांटिक एजेस, उसने इन डेवलपिंग एजेस को दिया. एंड दिस एज अपीयर्ड एवरीवेयर, हर कंट्री में ये एजेस थी. सब कंट्रीज 19th सेंचुरी का एंड वाज द हाई एज ऑफ कैपिटलिज्म. बट उसकी प्रॉब्लम ये थी कि इट वाज इन एवरी कंट्री, सो दे स्टक इन अ टाइप ऑफ कंपटीशन. हर देश में यही एज थी, एंड दे स्टार्टेड अ सॉर्ट ऑफ कंपटीशन, एंड दैट कंपटीशन गेव द ओवर प्रोडक्शन. ओवर प्रोडक्शन होता है, स्टील प्रोड्यूस हुआ, बेसमर प्रोडक्शन आया, तो स्टील ही स्टील. So from this overproduction appeared a type of fall in prices. जब भी overproduction होता है तो prices fall होते हैं. एक बहुत बड़ा एग्जांपल है overproduction का, silver overproduction. This age produced so much silver in this world that every country, almost every country has pulled itself out of silver standard.
सिल्वर लॉस्ट इट्स चार्म, इसलिए हर कंट्री आज गोल्ड रिजर्व रखती है। अनलाइक द प्रीवियस एजेस ऑफ 16th, 17th, 18th century, where silver and gold were on par. Obviously, silver is cheaper than gold, but silver भी बहुत प्रेशियस था। सिल्वर, जीसस को 12 सिल्वर के सिक्कों पे बेच दिया था जुडास ने। So that silver has lost its charm in this age, ये 19th century. That's the overproduction. ये overproduction. And from this long depression, from this mutual competition, appeared a new conflict theory. एक नई conflict theory develop हुई. That conflict theory is, भैया रबर चलो छोड़ो, conflict theory. That conflict theory is known as, हम उस conflict theory को जानते हैं, where it was said कि if you take this as 1, this as 2, तो third theory of conflict is the international conflict. The conflict is not between classes. क्लास कंफ्लिक्ट नहीं है, प्रोलेटेरिएट एंड बॉर्जुआ। नाइदर कंफ्लिक्ट इज ऑफ स्पीशीज, हमें इस कंफ्लिक्ट से, द मेन कंफ्लिक्ट विच गोज ऑन इन दिस वर्ल्ड इज द कंफ्लिक्ट ऑफ नेशंस। कंफ्लिक्ट ऑफ नेशंस, नेशन कंफ्लिक्ट करते हैं आपस में। फॉर एग्जाम्पल, टुडे वी इन इंडिया, हम भारत देश में, वी में अर्न अ बिट मोर मनी, हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। स्टिल आर क्वालिटी ऑफ लाइफ इज नॉट एज गुड एज एन अनएम्प्लॉयड इन स्वीडन और एन अनएम्प्लॉयड इन यूनाइटेड स्टेट्स। दे हैव एक्सेस ऑफ बेटर हेल्थ केयर, दंगे वहां पे कम होते हैं, लेस रॉयट्स, लेस सोशल टेंशन। वो ये वाला बिडेन वाला दंगा नहीं है, कोई वहां दंगा नहीं था, इट वॉज सिंपली प्रोटेस्ट, ब्लैक लाइव्स मैटर टाइप। सो देयर सो मच सो, इतना ज्यादा अंतर है हम में और उनमें कि टुडे व्हेन एन इंडियन गोज टू यूनाइटेड स्टेट्स, तो व्हेन ही डीबोर्ड द एयरप्लेन ऑन कैनेडी एयरपोर्ट, जैसे वो कैनेडी एयरपोर्ट पे उतरता है, फर्स्ट ही टेक सम सेल्फीज and then he tag his location and then he upload his photographs to prove to all of his friends and neighbors and relatives that he has made it, he is a successful guy. उनके एयरपोर्ट पर उतरना ही सक्सेस है इंडिया की। सो दैट्स द टाइप ऑफ डिफरेंस। इसका यह मतलब है कि आर क्वालिटी ऑफ लाइफ, आर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आर सोसाइटी इज डिसाइडेड बाई और इज टाइड टू द ग्रोथ ऑफ नेशन। If nation is growing, we will grow. If nation is not growing, we won't grow. हम नहीं ग्रो करेंगे। अब आप ये देख लें कि you do not want to live in Syria because Syria as a nation has failed. You do not want to live in various part of the world because as a nation they have failed. Venezuela में आप नहीं जाओगे, but you will go to Switzerland. You will go to Britain. आजकल शादी के बाद लोग लोन लेके स्विट्जरलैंड जाते जस्ट टू लिव दैट ड्रीम कि स्विट्जरलैंड गए। सो कंफ्लिक्ट और द कंपटीशन इज रियली बिटवीन नेशंस, सारा कंपटीशन नेशंस के ही बीच का है। दिस थ्योरी दैट नेशंस आर कंफ्लिक्टिंग ऑल्सो एड्स वन थिंग। आज तो फिर भी इसको कह सकते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट 19th century। इसमें कहा गया देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेशन, दो तरह के नेशन है। वन इज बॉर्जुआ नेशन, वन इज प्रोलेटेरिएट नेशन। एक अमीर बुर्जुआ नेशन है, अदर इज पुअर प्रोलेटेरिएट नेशन। बुर्जुआ नेशन आर दोज नेशन हु हैव कॉलोनीज, हु हैव ग्रैब्ड अ लॉट ऑफ लैंड। देखें भाई बॉर्जुआ नेशन कौन कौन से। ब्रिटेन इज अ बॉर्जुआ नेशन, कॉलोनी है इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अफ्रीका, कोई कमी नहीं। फ्रांस बॉर्जुआ नेशन, नॉर्दर्न अफ्रीका, देन
आज भी फ्रांस में 13 टाइम जोन्स है। इवन टुडे फ्रांस फॉलोज 13 टाइम जोन्स, इंडो चाइना। तो फ्रांस ऑल्सो हैज अ लॉट ऑफ कॉलोनी, फ्रांस की भी बड़ी सारी कॉलोनी है। देन वी विल सी रशिया। रशिया ऑल्दो डू नॉट हैव एग्जैक्ट कॉलोनी, जिसको ऑफिशियल कॉलोनी, बट रशिया का साइज देख लें, फ्रॉम अटलांटिक टू पैसिफिक रशिया ही रशिया है ऊपर, 11 टाइम जोन्स, सो रशिया। देन यू सी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इस पे भी प्रॉपर्टी की कमी नहीं है, फ्रॉम ओशन टू शाइनिंग ओशन, अटलांटिक टू पैसिफिक, ये भी है। दे हैव मूव्ड वेस्ट, एनक्रोच्ड द एंटायर लैंड। इवन स्पेन पुर्तगाल भी इसी नेशन में आते हैं। हाउएवर देयर आर सम नेशंस which do not have these properties, जो गरीब देश है, हम और आप नहीं, इंडिया की बात नहीं चल रही है। एशियन कंट्रीज आर नॉट नेशन, वो तो प्रॉपर्टी, दे आर प्रॉपर्टी ओन्ड बाई पुअर और रिच। अब प्रोलेटेरिएट नेशन कौन से? प्रोलेटेरिएट नेशंस आर दोज नेशंस who want to get this property, who want to break into the upper class. Three famous: Germany, just unified, it do not have any property, it do not have any colony, and therefore it's the aim of Germany to get some property. Germany के पास property नहीं। Italy, just unified, it also needs property. जापान, इसको भी प्रॉपर्टी चाहिए, इट साइजेस। तो आप देख लें, जर्मनी, इटली एंड जापान, ऑल थ्री से दैट वी आर मोर टैलेंटेड, वी आर मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, वी आर बेटर। हाउएवर आर साइज डू नॉट अलाउ आर नेचुरल ग्रोथ, हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं है। एंड दिस लॉन्ग डिप्रेशन हैज फर्दर इंक्रीज द कॉम्पिटिशन, इसने कॉम्पिटिशन और इंक्रीज किया। सो देयरफॉर इट इज फाशिज्म विच इज बेस्ड ऑन इट्स इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग। फाशिज्म जो है वो एक बहुत ही साउंड इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग पर बेस है। दैट्स वाई व्हेन द क्राइसिस रीअपियर्स इन 1920s, when again the depression of 1929 appeared, the fascism has reappeared. अब सवाल देखें ध्यान से कि amongst many factors, पहले तो फाशिज्म की एक बार वो देख लेते हैं कि what is the feature of fascism. फाशिज्म के फीचर्स क्या क्या है? First feature of fascism, I have told you, international dialecticism. Dialecticism means conflict, two duality, two people or two groups trying to have a single or fighting for a single thing. So according to communism, it is material dialecticism. सारी लड़ाई material, economic resources की. International dialecticism. That is fascism का first aim. Second, अब इसी पे बनता है ultranationalism. Ultranationalism. Indoctrination of entire nation right from the childhood. बचपन से आपको नेशन का इंडोक्ट्रिनेशन कराया जाएगा एंड एवरीथिंग इज टाइड टू योर नेशन, योर लाइफ, एवरीथिंग इज टाइड टू नेशन. सबऑर्डिनेशन ऑफ एंटायर subordination of all causes to the cause of nationalism.
फाशिज्म आते अगर एक्सट्रीम नेशनलिज्म आपके दिमाग में नहीं आया, whenever fascism is named and it do not occurs to you that we are talking about extreme or ultra nationalism, it means your understanding of fascism is poor. That's why when BJP says भारत माता की जय और जो भी देश से जो भी बात करते हैं, so their variant of nationalism is known as fascism. कई बार आपने देखा होगा वेरियस टीवी चैनल्स और वेरियस कांग्रेस के जो चमचे हैं, वेरियस दे से कि व्हाई यू डू नॉट टॉक ऑन इकोनॉमी, व्हाई डू नॉट टॉक ऑन फार्मर्स प्रोटेस्ट, व्हाई डू नॉट टॉक अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, व्हाई डू नॉट टॉक अबाउट माइग्रेंट क्राइसिस, व्हाई यू ओनली टॉक अबाउट पाकिस्तान, चाइना. आप इन्हीं मुद्दों को क्यों उठाते हैं? तो व्हाट दे वांट टू से दैट यू हैव सबऑर्डिनेटेड ऑल द कॉजेस टू द कॉज ऑफ नेशनलिज्म. आपने बाकी सारे मुद्दों को पीछे छोड़ दिया है. आपके लिए सिर्फ नेशनलिज्म एक मुद्दा है. प्रॉब्लम इज नॉट दैट नेशनलिज्म इज अ कॉज, प्रॉब्लम इज नेशनलिज्म इज अबव ऑल कॉज. और नेशनलिज्म में यू आर ट्राइंग टू फाइंड एन एनिमी. दिस इज द एलिगेशन ऑफ लेफ्ट, जो लेफ्ट विंग का एलिगेशन है टुवर्ड्स BJP. That's why they claim or they blame BJP as a fascist party. सही है या गलत? That's right or wrong. I am no one to discuss here. I am only telling you why they are called fascist. तो this is the reason. अगर आप BJP कांग्रेस के चमचे या BJP के भक्त हैं तो आपको ये बात मगर जाननी चाहिए. Either if you want to support it or you want to reject it. In both the cases you need to know it. फोर्थ देखें, फाशिज्म टॉक्स अबाउट रिवाइवल ऑफ पास्ट ग्लोरी. हर नेशन का एक ग्लोरियस टाइम होता है. एवरी नेशन, नेशन मीन्स कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ पीपल, कौम जिसको बोलते हैं. देयर इज अ फेमस तो क्या ही, एक पोयम इकबाल की है, उसमें बोलते हैं कि गुफ्तार सियासत में वतन और ही कुछ है, इरशाद नबूवत में वतन और ही कुछ. He says that concept of कौम in Islam or religion is different from the concept of कौम in politics. तो यहां पर कौम वर्ड यूज होता है नेशन के लिए. नेशन इज ऑलवेज पीपल. नेशन इज नेवर, जो हम जमीन समझे वो जमीन नेशन नहीं, नेशन लोग हैं. Every people have some past glory in their mind. उनके दिमाग में एक past glory होती है. For example, state wise भी अगर ले लो, even if you will take every state of India, इंडिया के हर प्रदेश की, हर linguistic group की एक past glory है. तमिल पीपल चोल, केरल चेर, कर्नाटक विजयनगर एम्पायर, आंध्र प्रदेश सातवाहन, तेलंगाना काकतीय, महाराष्ट्र मराठास. ठीक है ना? सो लाइक राजस्थान राजपूत, बंगाल पाल किंगडम, असम अहोम किंगडम, बिहार मगध एम्पायर. सबके एक दिमाग में पास्ट एज चलती है कि एज ऑफ ग्लोरी, जब हमारा परचम लहराता था, तो ऑल दैट. जैसे कश्मीर में ललितादित्य मुक्त पीड़, छोड़ो कश्मीर पे ज्यादा कमेंट नहीं करना चाहिए. सो रिवाइवल ऑफ पास्ट ग्लोरी, इट्स ऑल्सो रिवाइवलिस्ट. फिफ्थ, जैसे इटली, तो अबाउट रोमन एम्पायर. जो फाशिज्म का वो आपने देखा होगा, गोल्डन रॉड विद एक्स ऑन द टॉप. ये जो सिंबल है फाशिज्म का, ऐसे करके गोल्डन रॉड्स, और ये ऊपर ऐसे करके एक्स थी. So this symbol of fascism tells, this is the Roman symbol. फासिस से आया है. नाजिज्म ने अपने एम्पायर का नाम क्या रखा था? थर्ड राइक. जर्मन एम्पायर ऑफ 1871. हिटलर ने कहा मेरी थर्ड किंगडम है. इट्स लाइक एज अ हिंदू किंगडम, इफ आई क्रिएट अ किंगडम एंड आई कॉल इट द तीसरा राज्य, द थर्ड राज्य. तो आप मुझसे पूछोगे सर फर्स्ट और सेकंड कौन से हैं? तो फर्स्ट इज राम्स अयोध्या, फर्स्ट. सेकंड इज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ, तीसरा मेरा है.
तो दैट्स द टाइप ऑफ रिवाइवलिज्म और कल्चरल कैपिटल आई ट्राई टू गेन। जैसे इमरान खान ने कहा ना कि मैं रियासत मदीना बनाने आया हूं, तो नाउ ही एक्सप्लेन्स कि व्हाट द टाइप ऑफ रिवाइवलिज्म ही वांट्स। देन देयर आर लॉट अदर फीचर्स की तो इसमें कोई कमी नहीं है। कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, ऑल द इकोनॉमी विल बी सबऑर्डिनेटेड टू द नेशनल नीड्स। नेशन को अगर जूट चाहिए तो एवरी प्रोडक्शन सेंटर विल स्टार्ट क्रिएटिंग जूट। इफ नेशन वांट्स आयरन फॉर इट्स आर्मी, तो फिर आपका काम है सब आयरन ही बनाएंगे। इवन एवरी स्मॉल शॉपकीपर विल गिव डोनेट हिज आयरन। सो दैट इज फाशिज्म। नाउ देयर आर ग्रेट फैक्टर्स ऑफ दिस फाशिज्म। इस फाशिज्म के बड़े सारे, और इट्स लॉन्ग स्टोरी, आई डू नॉट वांट टू स्ट्रेच इट, क्योंकि हम राइज ऑफ फाशिज्म पढ़ना है हमें, टाइम होता चला जाता है, फिर आई कीप ऑन स्पीकिंग। Amongst many factors, the Great Depression of 1929 played a major role in the rise of fascism. तो what are the एक चीज बस आप जान ले, what I want to tell you, what I have seen that students don't have that idea, so they miss it. If I talk about Russia in World War II and Germany in World War II, there is something exact happened with them. Tsar was ruling Russia. Kaiser was ruling Germany. There was a provisional government made in both the places. Tsar की गवर्नमेंट के बाद आई प्रोविजनल गवर्नमेंट. Last class we have discussed about it, provisional government. After Kaiser there came Weimar Republic. In the midst of war, when war went bad, the provisional government has asked Tsar to step down, Weimar Republic has asked Kaiser to step down. Politicians said that king's rule is not very good for this country, the king should step down. Chupchap Kaiser हट गए. Similar thing was told to Tsar a year ago. उनसे एक साल पहले कह दिया गया Tsar से कि board a train, leave this. ट्रेन में ही कहा गया कि अब आप राज करना छोड़ो. We will manage the economy and nation. तो exact similarity. एक और similarity, that when these provisional government or Weimar Republic, they also started becoming unpopular. उसका कारण यह है कि आप एक बार में इकोनॉमी तो ठीक नहीं कर दोगे ना विद इन 6 months. तो ऑल द फैक्टर्स कंटिन्यू, इन्फ्लेशन कंटिन्यूज, पीपल आर स्टिल डाइंग, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो एक कंटिन्यू रहता है. दैट्स व्हाई आफ्टर प्रोविजनल गवर्नमेंट इन रशिया देयर वाज एन अक्टूबर और बोल्शेविक रेवोल्यूशन. इसको बोल्शेविक कह लें, अक्टूबर रेवोल्यूशन रशिया में आया. इन जर्मनी द सिमिलर रेवोल्यूशन केम कॉल्ड स्पार्टसिस्ट रेवोल्यूशन. स्पार्टसिस्ट, और इसको स्पार्टकस रेवोल्यूशन भी बोलते हैं, बट स्पार्टकस रेवोल्यूशन रोमन रेवोल्यूशन से मिक्स ना हो जाए, दैट्स व्हाई वी कॉल इट स्पार्टसिस्ट रेवोल्यूशन. ये भी कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन था अगेंस्ट वाइमार रिपब्लिक. यूएसएसआर में सक्सेस हो गया. इन जर्मनी इट कुड हैव सक्सीडेड. दैट्स व्हाई वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ जर्मन प्लेबिसाइट, और सॉरी जर्मन आर्मस्टिस, German acceptance of end of World War was this Spartacist revolution. कि ऐसा ना हो वर्ल्ड वॉर खत्म करने में बड़ा ईविल आ जाए. Like in Russia, according to politicians, a bigger evil has appeared. जार से छुटकारा पाने के चक्कर में लेनिन आ गया और स्टालिन आ गया. Germans never wanted this. जर्मन्स न्यू कि कैसर को हटाने के चक्कर में कहीं कोई कम्युनिस्ट डिक्टेटर ना जाए जो बचा हुआ बिजनेस भी खा जाए. इट शुड नॉट बी दैट लाइक लुई 16 को हटा के नेपोलियन बुला लिया था, या भुट्टो को हटा के जियाउल हक बुला लिया, या सिकंदर रजा चौधरी को हटा के अयूब खान बुला लिया. आई कैन गिव यू अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स. या शांघाई शेख को हटा के माओ बुला लिया. So it's not that ki in the to get a
सॉल्यूशन यू कॉल अ बिगर इविल, तो ये बिगर इविल नहीं बुलाना. दैट्स वाई जर्मनी हैज यूनिलेटरली एक्सेप्टेड द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर वन when none of the foreign armies were inside in its land. कोई आर्मी जर्मन बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाई. Germany was still in France. Germany after Brest-Litovsk has still taken that Estonia, Lithuania, Lithuania. Germany अभी भी अपने बॉर्डर्स पे टिकी हुई थी. That's why after end of World War I, when Treaty of Versailles gave such a brutal provisions to Germany, in Germany there was a theory called stab in the back theory. पीठ पे छुरा भोंक दिया गया. That's why Weimar Republic was so unpopular in Germany. कि when we were winning, अब ये तो सबको बताया था कि हम जीत रहे थे. When we were winning, when we were winning, our politicians have ended the war, and we were humiliated in Weimar. लड़ते तो हम छक्के दांत खट्टे कर देते. तो हिटलर वही दांत खट्टे करने आया था. जो हमारे दिलों में वॉर मॉन्गरिंग रहती है कि अगर लड़ जाते तो यार हम ही जीतते, वी वुड हैव वन. देयरफॉर वन ऑफ द रीजन ऑफ राइज ऑफ फाशिज्म वाज दिस. वन रीजन ऑफ राइज ऑफ फाशिज्म. फाशिज्म का मतलब जो इटली और जर्मनी दोनों में. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फाशिज्म एंड नाजिज्म, ये समझ ले. फाशिज्म प्लस रेसिज्म इज नाजिज्म. फाशिज्म बिलीव्स इन नेशन. ध्यान से सुने, फाशिज्म बिलीव्स इन, या इटालियन फाशिज्म बिलीव्स इन टेरिटोरियल नेशन. नेशन एज ए टेरिटरी. जो भी इटली में रहता है इटालियन. नाजिज्म हैज आइडेंटिफाइड, which we call as German variant of nationalism. Nation means only the Aryan race. Jews, Poles, Czechs, ये सब हमारे नेशन के पार्ट नहीं है. तो इवन अ जू फॉर 300 years लिविंग इन बर्लिन, बर्लिन में 300 साल से रहने वाला जू जर्मन नहीं. Whereas an Aryan or a German speaking man living in Sudeten province of Czechoslovakia is German. Israel भी इसी nationalism पे, we call it German variant of nationalism. Anyone who's living even outside, if shares that trait with us, अब वो trait religion हो सकता है, language हो सकता है, he is Indian or he is German. और हमारे हार्ट में रहने वाला भी हमारी कंट्री का नहीं है if we do not have the same trait. ज्यादा प्रेजेंट एग्जांपल से मैं इसे कनेक्ट नहीं करना चाहूंगा. आई डोंट वांट टू मेक इट कंट्रोवर्शियल. उसमें और भी प्लस माइनस, ऐसा नहीं है हमारा वाला जो वो सुना होगा आपने, पर आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट. सो नाजिज्म. अब हाउ दिस वेरिएंट ऑफ फाशिज्म डेवलप्ड, सारे फैक्टर्स के देख लेते हैं. फर्स्ट, सबसे पहला है कि fear of communism. Hitler and Mussolini, this is called the self-surrender of liberalism. Hitler and Mussolini were accepted by their own country, the middle class, by the people of their own country, because there was a clear fear of communism. And this communism increases its pace when the 1929 or 1920s falling economic condition. जैसे इकोनॉमिक कंडीशन डिटीरियोरेट होती जा रही थी, there were a lot of chances that communism can appear. And in the fear of communism, these countries, Italy and Germany, have self-surrendered. इन्होंने अपना self-surrender कर दिया. Depression of 1929 has increased this fear. That's why in 1933, President Hindenburg has appointed Hitler as chancellor even when Hitler did not had the majority. Hitler के पास majority नहीं थी. But Hindenburg, who disliked Hitler, Hindenburg always called Hitler as a buffoon, मूर्ख इंसान, a demagogue, a liar. But still Hindenburg has appointed Hitler. Hindenburg ने हिटलर को अपॉइंट किया.
Because country was pressurizing, middle class lobby was pressurizing that he is the man who mean business. He is the only one who can stop the spread of communism, who can take us out from this depression. जो हमें इस depression से बाहर निकाल सकता है. And therefore, the moment Hitler came, the first thing happened is fire of Reichstag, Parliament building में आग लग गई. And who was blamed for that fire? Communist. And then Reichstag decrees in 1933 has banned communism in Germany. तो जो भी इटली और जर्मनी की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी in 1929, to solve all of those economic problems, the fascism and Nazism was called. Mussolini was already in Italy, उसको powers उसकी बढ़ाई गई, and Hitler, who in 1920s was toiling jail में, पहले तो बंद कर दिया 1929 तक, whose party barely gets any seat. You see the rise of Hitler from 1929 on. ये तो आजकल तो इंटरनेट गूगल है, you can see the number of seats की how steadily he increased. Even then in 1939 he was not in majority, elected. Second देखें, communist call of class division in a nation. जो nation का class division था, Fascism always said कि this internal division है, जो class आप करते रहते हो आपस में लड़ाने का, this is wrong. Nation should be subordinated to a single agenda. एक एजेंडा पे बेसिस होना चाहिए nation. And therefore, to make nation more efficient, Fascism appeared. Third, जो भी ये international system है, according to Fascism, the communist international system is nothing but the subordination of Moscow. Comintern जो बनाया था, in last class we have discussed 4 international, जो Comintern बनाया था लेनिन ने, that is nothing but the subordination of all concerns to Moscow. Moscow has sent, or Lenin has sent, M.N. Roy to India, जिसने 1921 में ताशकंद में पहले CPI पार्टी ताशकंद में बनाई. Then 1925 he formally formed that party in कानपुर. तो एक ही साल में 1925 में there were 2 parties or 2 groups in कानपुर, CPI, the extreme left, and in नागपुर विजयदशमी के दिन in 1925 RSS. तो RSS and CPI, they are made few months apart and few kilometers, नागपुर और कानपुर. So that CPI was made with the help of Bolshevik Russia. Fourth, I have told you stab in the back theory. Then fifth, their rise is due to poor belief in democracy. There was no democratic traditions in this country, जैसे ब्रिटेन और फ्रांस यूएस ने डेवलप किया था. एंड व्हेन यू हैव पुअर ट्रेडिशन तो ये माना जाता है, इफ यू हैव लॉस्ट द इलेक्शन योर लाइफ इज इन डेंजर. आज राहुल गांधी इज वेरी हैप्पी, उनकी लाइफ नहीं, ही नोज हिज लाइफ इज नॉट इन डेंजर. कूद जाते हैं पब्लिक के बीच में. वाई? बिकॉज इंडिया हैज द डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन. एवरीवन नोज कि जैसे इलेक्शन जीतेंगे तो पास करा जाएगा. तेजस्वी यादव, नो मैटर हाउ मच बिटर ही इज, वहां जाके उन्होंने यही कहा असेंबली में कि हम स्वागत करते हैं नीतीश गवर्नमेंट का. एंड ऑल्दो ही वाज बिटर, एविडेंटली बिटर, बट स्टिल ये डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है, द ट्रेडिशन ऑफ पासिंग गवर्नमेंट पीसफुली. जहां पे नहीं होता है वहां पे फिर वो देते नहीं. व्हेन दे थिंक दे आर गोइंग टू लूज इलेक्शन तो फिर वो कुछ करने लगते, कुछ रूल लगा दे देंगे, गोली मरवा देंगे एंड सो ऑन. देन सिक्स्थ, अपार्ट फ्रॉम अदर रीजंस, बड़े सारे हैं, हर रीजन ही रीजन है. देयर वॉज द टेंडेंसी ऑफ रेशिज्म, वो तो सिर्फ जर्मनी पे अप्लाई होगा. तो अपार्ट फ्रॉम ऑल रीजन यू विल सी सम ऑफ दीज एमिनेट्स फ्रॉम द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स. तो आंसर में ऑल्दो वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेट डिप्रेशन, इफ यू विल मेंशन दिस लॉन्ग डिप्रेशन, अगर आप इस लॉन्ग डिप्रेशन को मेंशन करेंगे एंड यू विल स्टार्ट की द एंड ऑफ 19th century saw a long depression of 25 years. This increased the
competition among the nations. Full stop. After World War I, such competition again reappeared and especially intensified during the Great Depression. The countries which did not perform good called for totalitarian regimes to counter this falling prosperity. इस falling prosperity को काउंटर करने के लिए totalitarian regimes को बुलाया गया. The totalitarian regimes of Italy, Germany, Spain and some other countries were called the fascist regimes. ठीक है. और फिर आगे जो भी हमने फैक्टर्स डिस्कस करे, एक लाइन में आप लिख देंगे कि दीज आर द जनरल फैक्टर्स. स्टैब इन द बैक थ्योरी, इन्फ्लेशन, नहीं इन्फ्लेशन तो उस लास्ट में, स्टैब इन द बैक थ्योरी, प्योर बिलीफ ऑफ डेमोक्रेसी, national competition were some of the reasons of the rise of fascism. However, a strong economic reasoning also explained the rise. और फिर वो इकोनॉमिक डेफिनेशन, इकोनॉमिक बेसिस ऑफ fascism लिखेंगे, that explains the answer that how Great Depression of 1929 played a major role in it. तो बात यह है कि जनरली when I have seen the copies of students, तो या तो वो बैकग्राउंड को बहुत डिस्कस कर देंगे, अगर उन्होंने बैकग्राउंड जैसे ये क्लास सुन ली तो जाके बैकग्राउंड ही डिस्कस कराएंगे. 19th सेंचुरी इंटरनेशनल डायलेक्टिसिज्म, डार्विनिज्म और डार्विनिज्म की थ्योरी. आई डोंट डू दैट. इट्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि इससे और बहुत सारे सवाल निकले तो यू कैन अंडरस्टैंड. द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी वाज व्हेन द कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज हैव अपीयर्ड एंड वर अप्लाइड इनटू वेरियस एस्पेक्ट्स. अब इसका आंसर आप उससे लिखेंगे. हाउएवर फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग यू विल स्टार्ट फ्रॉम लॉन्ग डिप्रेशन. बस जरा सा लॉन्ग डिप्रेशन का जिक्र, बस ओनली हाफ ऑफ द लाइन ऑफ लॉन्ग डिप्रेशन. At the end of 19th century, a 25 years long depression has given the competition to nations which resulted. देखो जब भी कभी डिप्रेशन आता है तो कंफ्लिक्ट होता है. लॉन्ग डिप्रेशन रिजल्टेड इन एंडेड इन वर्ल्ड वॉर 1, ग्रेट डिप्रेशन एंडेड इन वर्ल्ड वॉर 2. 2008 का जो ये क्राइसिस आया है, which appeared in 2008 and it was also one of the great recessions, so financial crisis. So this resulted in the two counter or two blocks in this world, US and China. US and Chinese block इससे बन रहा है, and that will crystallize. भगवान करे कि ना crystallize हो, but you don't have option. Second question, League of Nation. We are discussing about League of Nations, an organization with turbulent but a hopeful start. Start turbulent है but hopeful है. However, a pharisaical end. अगर आप League of Nations का ग्राफ देखें, so this is the graph of League of Nations. By 1930, या थोड़ा इसको और ऐसे कर दो, by 1931 everyone thought that League of Nations will work. ये वर्क करेगी. However, जापान, जर्मनी, इटली, ये जो एक्सेस था, रोम, बर्लिन, टोक्यो एक्सेस, that resulted in the collapse of League of Nations. जल्दी जल्दी इसको सबसे पहले जापान ने छोड़ा. When Japan has left it, तो USSR was brought as the counter block. Then Italy has left, Germany has left, फिर it became a pharisaical. ये almost ineffective हो गई. We will see कि what are the, it's a very simple question. इससे simple question नहीं हो सकता. That League of Nation, in first part we have to see that how League of Nation was a success. Generally we think that League of Nation was doomed right from the start. तो ये गलत है. It was not doomed right from the start. It proved effective. ये effective prove हुआ था. It's only at the second half that it collapsed. तो पहले देखते हैं कि League of Nations turbulent start. तो इसका आप देखो, your answer should have
a good 2-sentence introduction, then some point of its early success. However is a good word in answers. However, in 1930s, the League of Nations lost its authority due to following reasons. At the end, League of Nations could not achieve what it was envisioned from. It took a 6 years long war and furthermore crises to develop a successor organization of League of Nations, where the defect of League of Nations were the defect of League of Nations were addressed. तो इट टुक एक वॉर और लड़ा गया और बहुत सारे क्राइसिस के बाद एक नया लीग ऑफ नेशन का सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन बना जिसने उसकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया. सो दिस इज द आंसर. पॉइंट्स हमें देखने सक्सेस के और फेलियर के. वी विल हैव टू सी द पॉइंट ऑफ सक्सेस एंड द पॉइंट्स ऑफ फेलियर. तो भाई सबसे पहले देखें कि हाउ इट हैज अ टर्बुलेंट स्टार्ट. तो टर्बुलेंट स्टार्ट it was given by Wilson's 14 points. It was the idealism and internationalism of Wilson which started or which envisioned the League of Nations. League of Nations को वुडरो विल्सन के आइडियलिज्म और इंटरनेशनलिज्म ने एनविजन किया. However, US did not took part in the League of Nations. उसका कारण यह है कि आफ्टर विल्सन क्या नाम था, केल्विन कूलिज से पहले टाफ्ट. So Taft has rejected and Calvin Coolidge both, they have rejected the internationalism of Wilson. इन दोनों ने विल्सन के इंटरनेशनलिज्म को रिजेक्ट किया. And therefore US did not took part in League of Nations. Even USSR also did not took part. तो जो दो बड़े देश थे उन्होंने League of Nations में हिस्सा ही नहीं लिया. They did not took part in League of Nations. Later when UNO was made to end this tussle, कि वो न ले ये न ले, they were given veto powers. उनसे कहा गया ठीक है, you take part, you have the veto, whenever you think something should not be done, you could veto it. तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज प्रोवाइडेड वीटो पावर, जो वैसे तो इन डेमोक्रेटिक एंड इन इक्वल वर्ल्ड इट लुक्स बैड, इट लुक्स रॉन्ग. जो यूएन का वीटो पावर है ये रॉन्ग लगता है. हाउएवर व्हेन वी सी द एक्सपीरियंस ऑफ लीग ऑफ नेशंस, तो इट्स बेटर दैट कंट्री अप्लाई वीटो रादर देन लीविंग ऑल टुगेदर, बिकॉज इन इंटरनेशनल फोरम देयर इज नो एनफोर्सेबिलिटी. कोई एनफोर्सेबिलिटी नहीं है. ब्रेग्जिट हो गया, किसने रोक लिया? Likewise, this League of Nations, it was not joined by USA and USSR. उसके बाद, but League of Nations had some success. तो सक्सेस देखते जाएं लीग ऑफ नेशंस की. तो पोलैंड एंड चेकोस्लोवाकिया fought for some part of its territory. However, लीग ऑफ नेशंस हैज इंटरवीन्ड, लीग ऑफ नेशन ने इंटरवीन किया एंड पोलैंड हैज एक्सेप्टेड. देखो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशन. इन इट्स फॉर्मेशन देयर वर सम इश्यूज. जैसे इश्यूज ये थे कि लीग ऑफ नेशन वांटेड टू हैव अ 4-day डेडलाइन टू आइडेंटिफाई हु इज द एग्रेसर. एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट वॉर हुआ तो हु इज द एग्रेसर, इट हैड द टाइमलाइन और डेडलाइन ऑफ 4-day आइडेंटिफिकेशन. तभी तो आप पनिश कर सकते हो एंड देन ओनली यू कैन स्टॉप. ये माना नहीं गया कि इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स. 99% ऑफ द इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स आर नॉट सॉल्वेबल. द रीजन इज वी कैन नॉट आइडेंटिफाई हु इज द एग्रेसर. हम आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाते एग्रेसर कौन था. एंड व्हेन वी कैन नॉट आइडेंटिफाई हु इज द एग्रेसर, तो कहना किससे कि तुम मान जाओ. यू आस्क पाकिस्तान, तो पाकिस्तान तो यह कहता है कि हम अपने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड कर रहे हैं तो एग्रेशन. और हम कहते हैं पाकिस्तान इज एग्रेसर इन चाइना. तिब्बत में चाइना सेज दैट इंडिया इज एग्रेसर इंटरवीनिंग इन आवर इंटरनल इश्यूज. हम कहते हैं चाइना हैज टुक ओवर तिब्बत.
अब कहने लगे हैं। सो इन इंटरनेशनल इश्यूज द मेन प्रॉब्लम इज टू आइडेंटिफाई द एग्रेसर। लीग ऑफ नेशन डिड नॉट फॉलोड दिस कंसेप्ट ऑफ टाइमलाइन। ये टाइमलाइन का कंसेप्ट फॉलो नहीं हुआ, इसलिए आप देखोगे लीग ऑफ नेशन लेटर कुड नॉट सॉल्व अ डिस्प्यूट। बट शुरू में लीग ऑफ नेशन, सबको लगा था लीग ऑफ नेशन विल बी एन इफेक्टिव बॉडी, इट विल बी एबल टू सॉल्व द क्राइसिस। तो पोलैंड चेकोस्लोवाकिया का क्राइसिस सॉल्व करवाया। देन स्वीडन फिनलैंड का क्राइसिस, देयर वाज अ टेरिटरी ऑफ सम आइलैंड व्हिच वाज डिस्प्यूटेड, लीग ऑफ नेशन गेव इट टू फिनलैंड, स्वीडन हैज एक्सेप्टेड। जर्मनी पोलैंड, there was a territorial dispute, League of Nations has brokered a plebiscite, Germany and Poland both have accepted. Partition, उसमें plebiscite के हिसाब से partition हुआ, Germany and Poland both have accepted. Then Turks demanded after World War I, Turks have demanded the Mosul, which was given to French mandate in Iraq. इराक और सीरिया का जो फ्रेंच मैंडेट था उसको मोसुल मिलना था। League of Nations gave Mosul to Iraq, which was under French control. तो लीग ऑफ नेशंस गेव मोसुल टू इराक, टर्की हैज एक्सेप्टेड, टर्की ने एक्सेप्ट कर लिया। ग्रीस हैज इन्वेडेड बुल्गारिया, लीग ऑफ नेशन हैज इंटरवीन्ड, ग्रीस हैज एक्सेप्टेड। 4 लाख POWs, प्रिजनर्स ऑफ वॉर, दे वर ब्रोकर्ड बाय लीग ऑफ नेशंस, वो पीसफुली एक दूसरे को वापस किए गए। लीग ऑफ नेशन हैज फॉट इट्स वॉर अगेंस्ट अ लॉट ऑफ डिजीज, तब मलेरिया फैला हुआ था, देयर वॉज मेनी डिजीजेस, स्पेनिश फ्लू खैर गया तो अपने आप ही, पीपल हैव जनरेटेड इम्यूनिटी, बट स्टिल देयर वॉज अ लॉट ऑफ इश्यूज व्हेन ऑस्ट्रिया वाज पार्टीशन बिटवीन मेनी कंट्रीज, ऊपर चेकोस्लोवाकिया, ऑस्ट्रिया, नीचे यूगोस्लाविया, हंगरी, ऑल दीज कंट्रीज वर मेड आउट ऑफ ऑस्ट्रिया, तो देयर वर वेरियस डिस्प्यूट्स अपीयर्ड। वो डिस्प्यूट अंत में वर्ल्ड वॉर 2 ने सॉल्व करे, बिकॉज पीपल वर नॉट होमोजेनियसली डिवाइडेड। तो उनकी माइनॉरिटी है, वहां उनकी माइनॉरिटी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज द स्लाव पॉपुलेशन एंड दिस इज मुस्लिम माइनॉरिटी, तो मुस्लिम माइनॉरिटी का एक कंट्री हो गया। बट इन मुस्लिम माइनॉरिटी नाउ स्लाव्स आर माइनॉरिटी, तो स्लाव कंट्री छोटा बन गया। इस स्लाव कंट्री में फिर एक मुस्लिम माइनॉरिटी होगी छोटी सी, तो मुस्लिम। दिस इज कॉल्ड द बाल्कनाइजेशन। द मेन प्रॉब्लम ऑफ बाल्कनाइजेशन इज दैट दिस हेट्रोजेनस डिवीजन ऑफ और हेट्रोजेनस कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, तो हर कंट्री में जो पहले मेजॉरिटी था वो माइनॉरिटी बन जाएगा। एवरी कंट्री विच इज टुडे एवरी कंट्री हैज अ मेजॉरिटी एंड अ माइनॉरिटी। इफ माइनॉरिटी विल आस्क फॉर अ सेपरेट कंट्री, तो उस कंट्री के अंदर जो पहले मेजॉरिटी था वो माइनॉरिटी, फिर वो अंदर कंट्री बनेगा, उसके अंदर एक और माइनॉरिटी। सो दैट्स व्हाई यू विल कीप ऑन ब्रेकिंग नेशंस टू such a level that every individual house has to be called a nation. इसी को balkanization बोलते हैं, when something fragments. So League of Nations was successful in doing many things. ये सारी चीजें, पोलैंड, स्वीडन, मोसुल, ये आप याद कर लें। What my main aim is that you remember some positives of League of Nations. लीग ऑफ नेशन का नाम आते उस पर हंसना अच्छी बात नहीं है कि वेन एवर द टर्म लीग ऑफ नेशन एवर कम्स तो यू स्टार्ट लाफिंग, अरे यार इसका तो क्या ही है, इसका तो क्या ही डिस्कस करें, इट इज अ यूजलेस बॉडी। दैट्स नॉट द केस, इट वाज नॉट यूजलेस बॉडी, इट वाज यूजफुल। ठीक है, राइट। इन स्टार्ट प्रॉब्लम शुरू हुई 1931, जर्मन इन्वेजन ऑफ मंचूरिया, सॉरी जापानीज इन्वेजन ऑफ मंचूरिया। चाइना के नॉर्थ में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड मंचूरिया, जापान हैज इन्वेडेड दैट प्लेस। अच्छा, 1911 द क्विंग डायनेस्टी हैज एंडेड, किंग डायनेस्टी चाइना में एंड कर दी गई। लास्ट एम्परर ऑफ चाइना वाज अ 10-year-old बॉय पुई, तो दैट बॉय स्टिल लिव्ड, वो बॉय जिंदा था। जापान हैज इन्वेडेड मंचूरिया and raised that boy as the king, और वो तब तक आदमी बन चुका था, that man, the Pui, as king of Manchuria। उसको पपेट रिजीम बनाया और ये कहा कि we have freed Manchuria from the warlords of China। ये जो शांघाई शेख हैं और उनके बाद, हाँ शांघाई शेख, उनके पहले सुन यात सेन, इनके अंडर में जो they have occupied China, we have freed the part of Manchuria
एंड जापान हैज स्टार्टेड टेकिंग द रिसोर्सेज ऑफ मंचूरिया, जो मंगोलिया से ईस्ट में हो, मंगोलिया के ईस्ट में है। नाउ व्हेन लीग ऑफ नेशंस हैव थ्रेटेंड जापान फॉर सम सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शन ही उसके पास एकमात्र थे जो यूएन के पास है, जापान हैज हैप्पीली टुक इटसेल्फ आउट ऑफ लीग ऑफ नेशंस। 1932 में जापान ने लीग ऑफ नेशन छोड़ दिया। यूएसएसआर वॉज कॉल्ड एज काउंटर ब्लॉक, यूएसएसआर को लीग ऑफ नेशन में एक्सेप्ट कर लिया गया बिकॉज इट वॉज थॉट दैट जापान एंड यूएसएसआर आर मेन एनिमीज। ये हम जापान एंड यूएसएसआर डिड नॉट फॉट वर्ल्ड वॉर II ऑन दैट फ्रंट, देयरफॉर वी हैव दिस व्यू, वरना जापान एंड यूएसएसआर आर वेरी ओल्ड राइवल्स इन दिस मंगोलियन चाइनीज रीजन। जापान की थ्रेट को काउंटर करने के लिए यूएसएसआर इन 19th सेंचुरी हैज मेड द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन दिस वर्ल्ड। अगर आप में से किसी को पता हो, ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन फ्रॉम लेनिनग्राद, सेंट पीटर्सबर्ग टू लेनिनग्राड टू व्लादिवोस्टॉक, यहां व्लादिवोस्टॉक तक ये बना हुआ है। सो ट्रांस साइबेरियन रेलवे लाइन। सो देयरफॉर यूएसआर वाज कॉल्ड एज काउंटर ब्लॉक। 1905 में जापान ने यूएसआर को हराया भी था। आफ्टर दिस Italy has invaded Ethiopia, Abyssinia, the only free country of Africa. When League of Nations have threatened with the sanctions, so League of Nations could not do anything. कुछ कर भी नहीं पाए. 1936, when Germany has launched the 4-year plan of rearmament, League of Nations could not start. Even France, they have made a pact with Poland. फ्रांस ने पोलैंड के साथ पैक्ट किया अगेंस्ट जर्मनी. लीग ऑफ नेशंस कुड नॉट स्टॉप दैट. द पैक्ट बिटवीन मुसोलिनी एंड हिटलर, लीग ऑफ नेशंस कुड नॉट स्टॉप दैट. When Germany has taken Sudetenland and later Czechoslovakia, Munich Pact, लीग ऑफ नेशन वॉज एब्सोल्यूटली, कई जिक्र न्यूज़पेपर में जिक्र नहीं है यार तब के. When Edouard Daladier from France and Neville Chamberlain from Britain, the prime minister of two countries, they went to Germany, Munich, gave entire Czechoslovakia to Germany, entire world was watching. जवाहरलाल नेहरू ने स्टेटमेंट दिया था कि when Hitler and Mussolini were raping the bride of Czechoslovakia, France and Britain, Chamberlain and Daladier were holding her two hands. उन्होंने उसके दोनों हाथ पकड़ रखे थे. लीग ऑफ नेशन वॉज एब्सोल्यूटली, तो इसीलिए फैरेसिकल है. इट्स नॉट दैट इट मेट टू अ सडन एंड. सडन एंड नहीं हुआ लीग ऑफ नेशन, बस लीग ऑफ नेशन खत्म हो गया. इट्स लाइक कि बगल में आपके पुलिस चौकी बनी हो, देयर इज अ पुलिस चौकी, और उसके पीछे ही ड्रग्स भी लोग ले रहे हैं, सिगरेट भी पी रहे हैं, पुलिस चौकी में बैठ के ही तमाकू भी खा रहे हैं, जुआ भी वहीं खेल रहे हैं. तो इट्स नॉट दैट पुलिस स्टेशन एंडेड, इट्स फनी फॉर द पीपल. देख के हंसी और आएगी आपको, आप लोग भी हंस के लोगों को सुनाओगे कि यार ये हो रहा है थाने में. तो दिस इज व्हाट लीग ऑफ नेशन प्रूव्ड इनइफेक्टिव. देयर वाज अ when Germany took the entire Austria Anschluss, League of Nations was silent. Silent क्या, कोई पूछ भी नहीं रहा था, कुछ उन्होंने कहा भी नहीं. मतलब कहा, they have given the statements, but that League of Nations was an ineffective body. मुसोलिनी का यह कहना था कि League of Nations is a body which makes a lot of which act. League of Nations is a body which acts when the bird chirp. जब चिड़ियां चहचहाती हैं तो लीग ऑफ नेशन एक्ट कर देता है. बट रिमेन साइलेंट व्हेन द हॉक स्क्रीम्स. जब बड़ा कंट्री, व्हेन अ बिग कंट्री लाइक यूएसए, यूएसएसआर, अब मुसोलिनी का तो यही व्यू था कि यूएसए, यूएसएसआर, जापान, ब्रिटेन, फ्रांस, व्हेन दे डू समथिंग रॉन्ग तो लीग ऑफ नेशन नेवर से एनीथिंग. Poincare, the French Prime Minister, has sent his army to Rhineland.
एंड ऑक्यूपाइड द राइनलैंड इन 1920s, लीग ऑफ नेशन नहीं बचाने आया जर्मनी को. When Locarno treaties still opened or kept the Eastern European borders open for revision, League of Nations ने तो कोई गारंटी किसी को नहीं दी. When these countries occupy USSR, when inside its country it have crushed all the freedom of speech, took all of its industry forcefully to east of Ural, कोई League of Nations नहीं है कुछ बोल. हमने जरा सा सबने कॉलोनियां बना रखी है. ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, बेल्जियम, ये सब ने लूट रखा है अफ्रीका. लीग ऑफ नेशन इज साइलेंट, कभी लीग ऑफ नेशन नहीं बोलता. व्हेन वी वेंट टू एबिसिनिया, लीग ऑफ नेशन ने हमारे ऊपर कहा रेपरेशन लगा देंगे, वैसे तो कुछ किया नहीं. सो लीग ऑफ नेशन वॉज अ सक्सेस इन 20s अप टू सम लेवल, एब्सोल्यूट फेलियर इन 30s में वो एब्सोल्यूट फेलियर. तो व्हाट वी स्टडी, आप सबने भी इस बात पे खूब ध्यान दिया होगा, दैट हाउ लीग ऑफ नेशन इज अ फेल्ड बॉडी. माई एम इन दिस क्वेश्चन वॉज टू टेल यू दैट इट वॉज नॉट फेल्ड राइट फ्रॉम द स्टार्ट. कुछ उसने अच्छे काम, कुछ इफेक्टिव काम भी किए हैं. नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Now let's come to next question. It was USSR which gained most out of World War II. It was the USSR which lost most in it. सीधा सा सवाल है. Unlike question number 1, it needs no background. Unlike question number 2, it needs no analysis. इससे सीधा सरल सवाल इस जमाने में आपको नहीं मिलेगा. You simply have to enlist the loss and gains of USSR. USSR के losses और USSR के gains लिखने हैं. That's it. Nothing more than that. देखते हैं भाई, what are the losses and what are the gains of USSR. In your key it must be given. तो बोलना ही बेकार है. First let's discuss about the losses. तो आप ये समझ लें कि the country which was really at the forefront, at the firing line, that's the stormtrooper of World War I, is Germany and USSR. वॉर ही इन दो कंट्रीज का था. वर्ल्ड वॉर 2 वॉज द ट्रूली अ वॉर बिटवीन यूएसएसआर एंड जर्मनी. 55 मिलियन पीपल डाइड. वर्ल्ड वॉर 2 में 55 मिलियन, 5.5 करोड़ लोग मरे. 27 मिलियन फ्रॉम यूएसएसआर एंड अराउंड 14 और 15, शायद 14 या 15 मिलियन फ्रॉम जर्मनी. Both of these countries account for around 75% of the casualties of World War II. That's why at the end of World War II, Stalin was so bitter. Stalin अपने पार्टनर से इसलिए बिटर था because he thought that he has the one who took the wrath of Hitler. हिटलर का जो पूरा क्रोध जो बरसा था वो यूएसएसआर पर ही बरसा था. इट वॉज लाइक नेपोलियनिक कॉन्क्वेस्ट ऑफ 1812. जो पूरी लग्रॉ आर्मी, जो उसकी पूरी ग्रांड आर्मी घुसी यूएसएसआर पे एंड अनाइलेटेड द एंटायर यूरोपियन रशिया. द सेम डेवल वॉज रिपीटेड 130 years लेटर व्हेन हिटलर हैज एंटर्ड इनटू यूएसएसआर. और पूरे यूएसआर को उसने अनाइलेट किया. 27 मिलियन पीपल, 27 मिलियन was the casualty of USSR. USSR की डेथ की कैजुअलिटी रेट 27 मिलियन था. All the cities of USSR.
all cities were destroyed. It was not the old day wars. ये 30 years, 100 years पानीपत और तराइन वाले वॉर नहीं थे कि वेयर टू आर्मीज मीट एट अ बैटल ग्राउंड. जैसे एक बड़ा फेमस बैटल हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में, बैटल ऑफ कुर्स्क. बैटल ऑफ कुर्स्क, द बिगेस्ट टैंक बैटल एवर फॉट. दुनिया का सबसे बड़ा टैंक बैटल था. सेकेंड बिगेस्ट टैंक बैटल, कई बैटल्स को बोलते हैं, बट एक बैटल ऑफ चिवंडा इज वन ऑफ द ग्रेट टैंक बैटल, जो कि 1965 वॉर में इंडिया और पाकिस्तान ने लड़ा था. बैटल ऑफ चिवंडा. और इंडियन साइड ने उस चिवंडा के बैटल के बाद उस बैटल ग्राउंड का नाम रखा था पैटनाबाद. एन इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दैट्स आई एम टेलिंग. पैटनाबाद, बिकॉज पाकिस्तानी टैंक्स वर कॉल्ड द पैटन टैंक्स. पैटन, जनरल पैटन के नाम पे वर्ल्ड वॉर 2 वाले, जो सदर्न कोर के कमांडर थे एलाइड आर्मी के, तो उनके नाम पैटन टैंक्स थे. तो पैटन टैंक्स वर विद पाकिस्तान. इंडियन साइड क्लेम दैट वी हैव बरीड सो मेनी टैंक्स बीनीथ दिस ग्राउंड कि इस ग्राउंड का नाम पैटनाबाद रखना चाहिए. पाकिस्तान क्लेम्स दैट इट इज द लार्जेस्ट ग्रेवयार्ड ऑफ इंडियन टैंक्स. पाकिस्तान का कहना था कि ये इंडियन टैंक्स का ग्रेवयार्ड है और इंडियन साइड का कहना था कि इसका नाम ही पैटनाबाद रखना चाहिए. सो दिस इज बैटल ऑफ चिवंडा. पता नहीं मैं क्यों बता दिया मैंने. द लार्जेस्ट टैंक बैटल, तो वो जो कुर्स का टैंक बैटल था, द टैंक बैटल बिटवीन द पैंजर जर्मन टैंक्स एंड द यूएसएसआर टैंक्स, तो वो भी एक बहुत बड़ा बैटल था, बट कैजुअलिटी वाज लेस. वो आर्मी कैजुअलिटी. हाउएवर आफ्टर दिस एरोप्लेन, आफ्टर दिस ब्लिट्जक्रीग, जर्मन्स यूज्ड टू कारपेट बॉम्ब द रीजन. जिन रीजन में उनकी आर्मी को जाना होता था उसमें पहले वो बॉम्ब से उसको they used to annihilate the region. That's called the blitzkrieg, even used today. आज भी blitzkrieg स्टाइल ऑफ वॉर ही लड़ा जाता है. फर्स्ट एयरफोर्स गोज एंड annihilate the region, फिर उसके बाद आर्मी घुसती है. तो all cities were destroyed. Then the entire industrial production of USSR, World War II के बाद USSR was an industrial behemoth, बहुत सारा प्रोडक्शन कर रही थी, but all production was of military. सारा प्रोडक्शन मिलिट्री प्रोडक्शन था, नॉट सिविल प्रोडक्शन, नॉट कार्स और रेडियोज और whatever. Then USSR has ended the war with nuclear bomb with its adversary USA. इसकी एक अलग कहानी है, एक कंस्पिरेसी थ्योरी है. आई एम नॉट टेलिंग कंस्पिरेसी थ्योरीज इन क्लास में. आई डू नॉट एंडोर्स दीज कंस्पिरेसी थ्योरीज, बट देयर इज अ थ्योरी विच सेज, सुना होगा आपने भी, कि हिटलर एंड अदर नाजी ऑफिसर्स, नाजी कमांडर्स, दे वर स्लिप्ड आउट ऑफ जर्मनी एंड एंडेड देयर लाइफ इन अर्जेंटीना. कहते हैं हिटलर की डेथ 1973 में अर्जेंटीना में हुई थी. तो थ्योरी ये कहती है, and how you support it or how Stalin supported this theory. इस थ्योरी का कहीं जिक्र मत करना. I am simply telling you कि why there is a reason of bitterness. Germany was developing this nuclear bomb, and Germany also had a weapon called V2, the Vengeance Weapon 2, which is a ballistic missile, which is a rocket. तो उसको V2, Vengeance Weapon 2 बोलते. When World War II was nearing, तो देयर वॉज अ ग्रेट डिमांड ऑफ जर्मन साइंटिस्ट. जनरल पैटन ने अपने सुपीरियर आइजनहावर से यह कहा कि द वन हु विल रीच बर्लिन फर्स्ट, जो पहले बर्लिन पहुंचेगा, दैट विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर. जो बर्लिन पहुंच जाएगा, इन साइंटिस्टों को उठा लेगा, ये सारी टेक्नोलॉजी ले लेगा, उसका फ्यूचर है. ठीक है. However, USSR was of the view that we have fought the fiercest battle. तो बर्लिन में जाके सरेंडर जर्मनी का लेना हमारा काम है. We must go Berlin and our Red Army should take the surrender.
आपने देखा होगा अर्जुन देव की बुक में बड़ा फेमस फोटो है कि ही इज टेकिंग आउट द नाजी फ्लैग और वो सोवियत फ्लैग लगा रहा है। तो यूएसए ब्रिटेन दे हैव टू एग्री टू इट कि ठीक बात है, यूएसएसआर मस्ट गो इन बर्लिन एंड टेक द सरेंडर, यूएसएसआर ही जाए और सरेंडर ले। हाउएवर यूएसएसआर वेंट टू बर्लिन फर्स्ट, यूएसएसआर बर्लिन में ही पहुंचे 30 अप्रैल। Neither they got any engineer nor they got any technology. बर्लिन का ये यूएसएसआर का ये कहना है, द क्लेम ऑफ यूएसएसआर रिमेन्ड कि व्हेन वी रीच्ड बर्लिन फर्स्ट, ये सारे इंजीनियर और टेक्नोलॉजी यूएसए पे कैसे पहुंच गई? हाउ दिस रॉकेट टेक्नोलॉजी रीच्ड यूएसए? यूएसएसआर का हमेशा क्लेम रहा है कि यूएसए नेवर डेवलप्ड द न्यूक्लियर बॉम्ब, यूएसए स्मगल्ड इट। जो न्यूक्लियर बॉम्ब वो 4 साल से नहीं बना पा रहे थे, एट द सरेंडर ऑफ जर्मनी 3 महीने में बना दिया। सो इट वॉज द जर्मन साइंटिस्ट इतनी ज्यादा हेजेमनी थी उनकी कि द कॉमिक्स ऑफ दोज ईयर्स, ये जो भी आती हैं, अरे कौन सी कॉमिक्स हैं ये, आयरन मैन और ये सारी, ये कैप्टन अमेरिका, दे शो जर्मन साइंटिस्ट एज द मेन विलेन और दिखाते हैं देयर साइंस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। So the reason is USA in those years was called pirate economy. वो सब जर्मन कॉपी कर लेते थे. Use this in the answer of your TRIPS. जो TRIPS है ना, ट्रेड रिलेशन एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसमें USA is saying that we are stealing this and we are stealing that. तो every economy in its development phase do this. USA has done this so much so that in Europe they were called the pirate economy till 1940s. World War II तक उनको pirate economy कहा जाता था. वो यूरोप की हर चीज चुरा लेते थे. Now, this nuclear bomb, this missile technology, this reached its enemy. उसके enemy तक पहुंच चुकी थी. USA and the Western Bloc ended this war with lot of profits. USA तो especially 75% of the world's gold ended up in United States. United States has a large Atlantic Ocean between Europe and rest of the world और Pacific Ocean between Asia and itself. तो अटलांटिक और पैसिफिक पार करके वॉर यूएस के फ्रंट डोर पे नहीं आया. नाउ दीज आर द लॉसेस ऑफ यूएसएसआर. सुनाने को बहुत लंबी कहानी है बट आई विल रिफ्रेन माई सेल्फ. However, there are a lot of gains. यूएसआर के बहुत सारे गेन्स भी थे. फर्स्ट गेन इज इट्स हेजेमनी इन ईस्ट यूरोप. USSR has reached the Eastern Europe. We today call it the Iron Curtain, where Poland, Eastern Germany, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, ऑस्ट्रिया तो खैर वही हो गया था न्यूट्रल. देन यूगोस्लाविया अंडर मार्शल टीटो, ऑल्दो यूगोस्लाविया has rejected the USSR's लीडरशिप इन 1949, तो वो तो एक तरीके से नाम बाद में ज्वाइन किया. बट दिस ऑल दीज कंट्रीज दे वर अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसआर. तो यूएसएसआर विच 6 years ago was fearing a blown out invasion by Hitler. स्टालिन का सबसे बड़ा फियर ही एडोल्फ हिटलर की राइज था when he has took all his industries east of Ural mountains. That USSR has now controlled not only Germany but all of the Eastern Europe. The Iron Curtain has descended across the Europe. तो पहला तो ईस्ट यूरोप में मास्टरशिप. अच्छा, सी द एम्बिशन ऑफ स्टालिन कि इन द पोट्सडैम कॉन्फ्रेंस एक ब्रिटिश ऑफिसर कहता है स्टालिन से, इट्स अ रियल इंसिडेंट, दैट कॉमरेड 3 years ago, 1942, 3 years ago, Hitler was in, or 2 years ago, Hitler was in Stalingrad. Hitler Stalingrad में था. And Stalingrad is even east of Moscow. ये मॉस्को है और ये Stalingrad. So Hitler was in the Stalingrad. And today you are in Berlin. आप आज बर्लिन में हो. तो see the statement of Stalin, he says with a very somber, with a very calm tone,
that Tsar Alexander reached Paris. मैं तो सिर्फ बर्लिन तक ही आया हूं, जार अलेक्जेंडर पेरिस तक गए थे आफ्टर द फॉल ऑफ नेपोलियन. So now that is the ambition of Stalin, that he was not happy taking this part. He claimed the entire Europe. उसका claim पूरे यूरोप पर था. It was only USA which could stop him and did. So first is the mastery of East Europe. Then he had the best military. जो भी बेस्ट मिलिट्री इन 1930s, USSR's military was much backward when compared to Germany, but with the Allies' help, जो American liberty ships used to take their technology to USSR, तो USSR's military was the most advanced, the largest, advanced and largest. आज भी Russia sells the majority of its forex is from this defense equipments, जो हमें भी जैसे गार्शकोव बेचा ना, जिसको हमने विक्रांत के नाम से लिया. Then USSR was accepted as a world power, a tag which always eluded the czars. Czars भी कभी इस टैग को नहीं रख पाए, leaving Tsar Alexander and Nicholas I. उनके टाइम तक तो ये टैग चला था. Only 30 years from Napoleon to 48 revolution, 33 years तक, 1815 से लगा के 1848 तक तो रशिया को माना जाता था एक पावर. आफ्टर दैट क्राइमियन वॉर एंड सो ऑन सो फोर्थ, Russia was never considered a world power. It was a big power, undefeatable. बिस्मार्क ने भी यह कहा था कि रशिया इज नॉट डिफीटेबल, रशिया को कोई डिफीट ही नहीं कर सकता. नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मिलिट्री प्रोवेस. रशिया कैन नॉट विन अस, ये तो बात ठीक, बट वी ऑल्सो कैन नॉट विन रशिया बिकॉज ऑफ इट्स साइज, बिकॉज ऑफ इनहॉस्पिटेबल रीजन. जो भी रशिया लड़ने जाएगा, लाइक स्पेन, लाइक डेक्कन इन इंडिया, if you have the small army, it will be defeated. If you have large army, it will starve. डेक्कन में जैसे आप छोटी आर्मी लेके जाओगे तो हार जाएगी वो गुरिल्ला वॉरफेयर में, और बड़ी लेके जाओगे तो भूखों मर जाएगी. सो आइदर यू कॉल इट डेक्कन और स्पेन और रशिया. स्पेन और डेक्कन बिकॉज ऑफ इट्स माउंटेनस टेरेन, बिकॉज ऑफ इट्स इनहॉस्पिटेबिलिटी, एंड रशिया बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज. जो भी इन जगहों पे जाता है वो डूम ही होता है, चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे वो नेपोलियन हो, चाहे वो हिटलर. रशिया के साथ एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि विंटर इतना ब्रूटल, इतना बिटर है कि आपको 6 महीने बाद वापस आना ही आना है. तो रशिया हैज दिस एडेड एडवांटेज. तो रशिया ऑल्दो वाज अनडिफीटेबल फॉर टाइम इमेमोरियल, बट नेवर अ अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड पावर. यूएसएसआर आफ्टर वर्ल्ड वॉर II became the undisputed world power. Then communism. जो communism, which was a theory which started its some experiments at the end of 19th century. First great success during World War I USSR. किसी को नहीं लग रहा था कि communism will flower with such a rapid pace. अच्छा, communism की किस्मत भी थी कि when it was moving up, Great Depression, World War II has resulted in the collapse of West. West का पहला collapse हुआ Great Depression से, दूसरा collapse हुआ World War II से. So in these cases, communism saw rise. Especially there are many satellite countries, बड़ी सारी तो satellite country बन गई थी, which I have just named. And then you will see कि there are various newly decolonized countries which were eager to move towards socialism because they were fed up of imperialism and the capitalism of imperialist countries. भाई इंडिया, even Pakistan being such Islamist country, उसने भी socialism से हाथ अजमाए. भुट्टो was openly claiming that he is a socialist. भुट्टो तो अपने आप को socialist ही claim करता था. So therefore, these are the countries which were newly decolonized country. Even आप देख लें वियतनाम, it moved towards
socialism or some variant of communism. The reason was it was fed up of, or it was oppressed by capitalism. So these are the gains of USSR and these are the losses of USSR. और बाद में आप ये लिख देंगे कि after a warfare of 6 years, USSR has so many hardships, but after all the crisis emerged as a world leader. A tag which continued with it for next half a century, for next 50 years. अगले 50 साल तक USSR ने इस गेम्स पे काम किया. Even USSR was the first to win the space race. Space race USSR ने ही जीती थी. When they have sent their Sputnik, जो Sputnik है वो USSR ने ही पहले भेजा था. Later USSR lost the race for moon. Moon की रेस USSR हार गए. अब कहते कई लोगों के दिमाग में आया होगा कि नहीं नहीं वो तो फेक थी लैंडिंग, पर ये इन सीरियस एकेडमिक्स वी डू नॉट डिस्कस सच इश्यूज. ये सब फालतू बातें नहीं करते हैं. एज इट वॉज फॉर यूरोप. ऐसा 5 मिनट का ब्रेक है, देन आई विल कंटिन्यू. Actually, I don't know where to pause it.
हाँ, सर इन्फो ज्यादा हो जाता है और समझ नहीं आता कि क्या लिखें। तो इन्फो जो है, आई थिंक आई शुड बी ऑडिबल। इन्फो जो है, तो डोंट वरी अबाउट दैट इन्फो। दैट पीडीएफ तो आपको दी हुई है, सो डोंट वरी अबाउट दैट कि व्हाट इज इन्फो। बट द व्हाट आई थिंक माई एम शुड बी कि यू शुड फील दैट द कंसेप्ट इज इन योर ग्रिप। ये एक प्रॉब्लम है विच स्टूडेंट जनरली, दैट इज अ सेल्फ डिफीटिंग प्रॉब्लम, दैट फर्स्ट यू नो व्हाट यू नीड टू नो राइट द आंसर एंड यू नो दैट मच ओनली, तो आप आंसर भी ठीक से नहीं लिख पाओगे। तो फर्स्ट यू नीड टू हैव द क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट एंड देन यू गो बैक टू द आंसर और गो बैक टू द क्वेश्चन, रीड इट। तो आप देखोगे कि आपके दिमाग में आपके खुद के विचार आते हैं, योर ओन थॉट, रादर देन क्रैमिंग द आंसर। यू मस्ट जनरेट योर ओन थॉट, दैट विल द ओनली थिंग विच विल हेल्प यू इन एनालिसिस। ठीक है, ये अपना पेज। चलो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4, वी आर डिस्कसिंग मार्शल प्लान। As it was for Europe, Marshall Plan was for USA herself. तो एक Marshall Plan was named on George Marshall, the Secretary of State under Harry Truman. एक US प्रेसिडेंट थे हैरी ट्रूमैन, who was elected or who became president twice. One was after the death of वुड्रो विल्सन, वाइस प्रेसिडेंट थे उनके, सॉरी आफ्टर रूजवेल्ट, ही वाज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ रूजवेल्ट, बिकेम प्रेसिडेंट इन 1945 एंड देन री-इलेक्टेड इन 1948. लॉस्ट, नॉट लॉस्ट, बट ही वाज रिप्लेस्ड बाय ड्वाइट आइजनहावर इन 52. तो वी आर टॉकिंग अबाउट रिचर्ड निक्सन. तो इन द फर्स्ट प्रेसिडेंटशिप ऑफ रिचर्ड निक्सन, हिज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मींस फॉरेन मिनिस्टर वाज जॉर्ज मार्शल. So to prevent any rise of extremism in Europe, like the extremism which developed after World War I. World War I के बाद देखो होता यह है कि जब लोगों को प्रॉब्लम आती है, when people face certain problems, economic hardships, especially inflation, तो ये फीलिंग डेवलप होती है across the country. There comes a feeling that we need discipline. We need a leader which could improve the things. So generally people welcome a dictator. After French Revolution, assignats was the currency and directory was the government. Corrupt government थी, inflating currency थी. People has called a dictator Napoleon. In Chinese Revolution or after World War II, currency was inflating. Corruption was rampant. People welcomed Mao. जब भी कभी करेंसी इन्फ्लेटिंग और करप्शन रैम्पेंट होता है तो वी कॉल डिक्टेटर्स. अब आई एम नॉट सेइंग दैट करप्ट रिजीम ऑफ कांग्रेस एंड द इन्फ्लेशन ऑफ 2010 to 15 कॉल्ड अ डिक्टेटर इन इंडिया. मैं नहीं कह रहा हूं कि उससे डिक्टेटर आ गया, बट अ टोटलिटेरियन लीडर के जो
रिफॉर्म करे और पीछे ना हटे। अभी यू आर सीइंग फार्मर प्रोटेस्ट। I am not teaching you current affairs, so I have all the right to tell you undiplomatically that the reform done by BJP is right. Believe me, it's right. ये सही रिफॉर्म है. In long term, when you will see, तो it's right reform. But no matter how much farmer protested, is BJP will not budge. पीछे नहीं जाएंगे. उसी तरह whenever some economic hardship comes, तो we call a leader who do not budge, जो इस तरह पीछे ना हटे. वो पसंद आता है लोगों को. So therefore, to prevent such totalitarianism where Italy has called Mussolini, Germany has called Hitler, और ये सारे लीडर जो आए, इनका राइज फिर ना हो, for that United States has passed a European recovery plan proposed by George Marshall. It was called Marshall Plan. Don't confuse his name with John Marshall, हमारे great restorer of our temples, first president of Archaeological Survey of India. तो technically first तो Alexander Cunningham है, but John Marshall, ठीक है? He is George Marshall of Marshall Plan. $13 billion was proposed. $13 billion का प्रपोजल था. And in that proposal, it was for the economic recovery of Europe. Earlier, it was envisioned for entire Europe. जब ये प्लान दिया गया था, तो it was unanimously for entire Europe. But later, the condition was put that money will be given only to the country which will democratize itself. It means it was clearly declared it won't be given to the countries behind Iron Curtain. जो Iron Curtain के पीछे countries हैं, उनको ये नहीं दिया जाएगा. It won't be given to those countries who are behind Iron Curtain in the USSR bloc. It will be given only to the West European countries. Now, Stalin did not obviously liked it, and he has created a East European Economic Union called Cominform. Cominform as a reply of Marshall Plan. ठीक है, तो बाद की कहानी है. $13 billion given to West European democratic countries, कह ले इन्हें, or you can call it the NATO countries or whatever. These countries were given $13 billion. ये तो इसका फैक्ट है. बट ये क्यों दिया गया? Why it was given? So there are two aspects. One says it was given to Europe, or it was beneficial for Europe. ये पहला व्यू है. सेकेंड व्यू, इट वॉज नॉट बेनिफिशियल फॉर यूरोप. इसने यूरोप का कोई बेनिफिट नहीं किया. नेक्स्ट हेडिंग इज इट वॉज बेनिफिशियल फॉर यूएसए. नेक्स्ट इज इट वॉज नॉट बेनिफिशियल. ये चार इसके व्यू हैं. इट वॉज बेनिफिशियल फॉर यूरोप, इट वॉज नॉट बेनिफिशियल फॉर यूरोप, इट वॉज बेनिफिशियल फॉर यूएसए, इट वॉज नॉट बेनिफिशियल फॉर यूएसए. ये चार व्यू हैं. We have to concentrate on these two issues. It was beneficial for Europe, it was beneficial for USA. ये इन दो पे आपका क्वेश्चन पूछा गया है. You can counter it कि yes it is beneficial for Europe, not for USA. इनमें आप कोई भी दो कॉम्बिनेशन उठा सकते हैं. पूछा हमसे गया है beneficial for Europe, beneficial for USA. बेटर यू गिव ऑल द फोर व्यूज. चारों व्यू दे दो भैया, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है. व्यू है, डिस्कस है. ठीक है, क्रिटिकली एग्जामिन. तो यू हैव टू क्रिटिकली एग्जामिन. तो पहले हम करेंगे कि वॉज इट फॉर यूरोप,
और इट वॉजंट फॉर। तो क्लियर सी बात है कि पहला तो है इट वॉज फॉर यूरोप, तो यस $13 billion was given and industrial production increased by 35%. Agricultural production surpassed pre-war level. Poverty and starvation that has reduced. West Europe has seen the greater rise in their economy rather than the Eastern Europe. Countries like Germany, Italy, France, their recovery was not only rapid but on par with the rest of the world. Western Europe जो है, by 1950 the crisis was long gone and आप देखें कंपनीज लाइक फोक्सवैगन, कंपनीज लाइक मर्सिडीज तो वर्ल्ड ब्रांड हो गए, जापान भी सिमिलरली। तो यस, मार्शल प्लान प्रूव टू बी बेनिफिशियल। हाउएवर, बिग हाउएवर, व्हाई इट वाज नॉट फॉर यूरोप? तो कंट्रीज लाइक फ्रांस एंड नेदरलैंड, ये दो एग्जांपल हैं। कंट्रीज लाइक फ्रांस एंड नेदरलैंड, they have spent more in Indochina and Indonesia in reconquering their lost territory. अपनी टेरिटरी को रिकॉन्कर करने में इन्होंने ज्यादा पैसा लगा दिया जितना इनको मार्शल प्लान से मिला था। It means मार्शल प्लान was not so crucial. They had money when they could invest in these costly wars. So how can you say that they needed the Marshall Plan? Second, recovery, European recovery was on its own. It was not that this Marshall Plan has revived Europe. इन्होंने खुद एक प्लान बनाया, आपने सुना होगा शूमन प्लान, something which has integrated the French and German economy, paved the way for Eurozone. It was again reviving demand, which has improved the economic revivalism. And revival really set in after 1950s, not soon after Marshall Plan. Marshall Plan के बाद नहीं, उसके 2-3 साल बाद रिकवरी शुरू हुई. We will see कि some of the great recoveries, especially West Germany, have received least in the Marshall Plan. मार्शल प्लान में कितनी हेल्प हुई, दैट डिड नॉट डिसाइडेड द रिकवरी. अ लॉट ऑफ रिकवरी वाज डिसाइडेड बाय द ह्यूमन कैपिटल अवेलेबल, बाय द इंटरनल फैक्टर्स. तो मार्शल प्लान डिड नॉट प्रूव टू बी बेनिफिशियल फॉर यूरोपियन कंट्रीज. ये दो इसके व्यू हैं. ठीक है, नेक्स्ट. अब आप ये पूछेंगे लिखना कैसे, तो आपका आंसर व्हेन यू विल सी. तो मार्शल प्लान के बारे में पहले छोटा सा बताएंगे, 2 लाइंस, कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, टू प्रिवेंट द राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज लाइक फासिज्म एंड कम्युनिज्म इन यूरोप, यूनाइटेड स्टेट्स हैज डिवाइज्ड अ रिलीफ फंड consisting of $13 billion, initially provided for entire Europe, later only for the Western Bloc, as it has posed a condition that only democratic countries will get it. A view suggests that it was for Europe. Following points prove it. तो 2-3 पॉइंट जो यूरोप के लिए यस वाले हैं. However, the European recovery was not so simple as it was dependent on Marshall Plan alone. There are other factors of recovery also. Last में ये भी लिख सकते हैं कि that the money spent by countries like France and Indonesia on their recolonization was much more than the aid of Marshall Plan. ठीक है, तो ये दोनों व्यू. ऐसा नहीं है कि आप अनरिटन लिख देंगे, ओनली यस यस करते जाएंगे. नाउ व्हाट्स द व्यू ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अब देखते हैं व्हाट्स द व्यू ऑफ यूएसए. तो फर्स्ट इज मार्शल प्लान वॉज फॉर यूएसए. तो आप देखें द एंटायर वर्ल्ड्स वेल्थ मनी वॉज विद यूएसए एंड द एंटायर इंडस्ट्रियल आउटपुट वॉज विद यूएसए. यूएसए के पास ही इस दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा था. देखो, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, वेरी पुअर इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर. जापान में जो था वो तो सब बर्बाद हो ही गया. Industrial structure was only with North America and Europe.
यूरोप वॉज डेवस्टेटेड इन द वॉर, तो बचा कुचा जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो सारा यूएस में हो रहा है। नाउ यूएस इज प्रोड्यूसिंग मोर देन इट्स ओन लिमिट्स और मोर देन इट्स ओन कंजम्पशन। As the overproduction of World War I or post World War I has brought the Great Depression, any such overproduction without buyer will bring another Great Depression. Produce World War I के बाद, जिसको Roaring Twenties बोलते हैं, Roaring Twenties has produced so much कि कोई खरीदने वाला बचा नहीं, यूरोप तो खरीद सकता नहीं था। To prevent any Great Depression, United States has given $13 billion, जिससे यूरोपियन कंट्रीज हमारा सामान खरीद ले। So therefore, it was a type of recovery or aid which was given by United States. First thing. After Britain, first, it was for USA. Second, to contain the spread of communism and USSR, the Western European countries were given the carrot of Marshall Plan to keep them in Western Bloc. In forums like United Nations, you need the support of votes. अपना सपोर्ट बढ़ाने के लिए Marshall Plan aid was given. This aid was given to spread via Europe into the colonies, जो भी बची कुची कॉलोनी, although United States and USSR both were against direct colonization. They have devised a new type of colonization जिससे डायरेक्ट colonization की जरूरत नहीं पड़ी, जिस new colonization was called neo-colonialism. However, still their control, अब जैसे आप देखें कि the Middle Eastern oil boom, तो Middle Eastern oil boom में फ्रांस एंड ब्रिटेन हैड अ लीड, फ्रांस और ब्रिटेन को लीड थी। However, via Marshall Plan and World War II politics, US was on top of these two countries. That's why when US has picked Saudi Arabia कि साउद फैमिली को हम सपोर्ट करेंगे, they are our puppets. So Britain had to contain with Persia. ब्रिटेन को चुपचाप पर्शियन ऑयल से ही काम चलाना पड़ा, which was lesser. ठीक है ना? So yes, Marshall Plan was for USA. Whereas second view says Marshall Plan was not for USA. First, Marshall Plan, the money was to be given not in US dollar but in the domestic currency of these countries. So these countries increasing the consumption of United States is not true. जैसे आप देखें कंट्री लाइक ग्रीस, ग्रीस को मार्शल प्लान में पैसा नहीं दिया गया था. द अमेरिकन म्यूल वॉज सेंट टू ग्रीस, जो बड़ा सा खच्चर होता है अमेरिका का. इट वॉज थ्राइस द साइज ऑफ ग्रीक म्यूल. ग्रीक खच्चर का 3 गुना बड़ा होता है. इट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फार्मर्स. अ लॉट ऑफ काइंड थिंग्स, अ लॉट ऑफ फिजिकल गुड्स आर बीइंग गिवन. ट्रैक्टर बांटे गए, पैसा सिर्फ नहीं दिया गया. So it proves that America did not really wanted to benefit from it. It was really a humanitarian cause. जैसे आप किसी कोई दुकानदार, a shopkeeper give 10 rupees to a poor man, तो आप ये मान सकते हो he is giving because he is in the hope that that poor man will buy from the shop. पर शॉपकीपर अगर खाने कोई कुछ दे रहा है तो you will have to accept that it's a humanitarian cause. तो entire $13 billion was not given in cash. बहुत सारा सामान भी खरीद के उस $13 बिलियन में से भेजा गया था. सेकेंड थिंग, द न्यूक्लियर बॉम्ब, द मिलिट्री हेजेमनी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स वाज सो टोटल एंड कंप्लीट ओवर वेस्टर्न यूरोप दैट दे नेवर नीडेड टू सेंड 13 बिलियन, और एनी हाउ दिस कंट्री वुड हैव फॉलोड यूनाइटेड स्टेट्स. थर्ड, द थ्रेट ऑफ स्टालिन एंड कम्युनिज्म वाज सो मच दैट नो एडेसिव वाज नीडेड फॉर यूनाइटेड स्टेट टू स्टिक दीज कंट्रीज टू इटसेल्फ. यूनाइटेड स्टेट्स को कोई $13 बिलियन का एडिसिव नहीं चाहिए था इन कंट्रीज को अपने से चिपकाए रखने के लिए. द थ्रेट ऑफ कम्युनिज्म एंड स्टालिन वाज एनफ टू डू दैट. सो देयरफॉर इसमें भी यू विल हैव टू, इन दिस आंसर यू विल हैव टू एंश्योर द डाइवर्सिटी ऑफ पॉइंट्स. भावनाओं में बह के लिखना कि नहीं नहीं इट वाज ओनली फॉर यूएसए, आपको ये कह दो कि नहीं नहीं मैं समझ गया
कि यूएसए ऑल्सो अप्लाइड इट्स ब्रेन एंड देयरफॉर इट वाज सोनली फॉर यूनाइटेड स्टेट्स, और इट वाज ऑल्सो, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है क्योंकि ये एक व्यू है ना कि यूनाइटेड स्टेट्स ने मार्शल प्लान अपने फायदे के लिए दिया था, इट गेव इट फॉर इट्स ओन बेनिफिट। तो इससे आगे भी नॉलेज है, इससे आगे भी दुनिया है कि नहीं ऐसा नहीं है। व्हेन यू विल काउंटर इट तो यू विल फाइंड कि देयर आर ऑल्सो व्यू विच सेज यूनाइटेड स्टेट्स रियली गेव अ ह्यूमैनिटी। हर बार किसी को लालची कहना ज्यादा बुद्धिमान होने का सबूत नहीं है। Fifth, we are talking about the Cold War. The hopes of early 1970s of calm in Cold War turned into new heights of rivalry. A decade later, पुनीत रत्नू, ओके सर, काफी कमेंट करते हैं ये, थैंक्स फॉर योर लार्ज हार्टेड कमेंट्स। Fifth, the hopes of early 1970s of calm in Cold War turned into a new heights of rivalry a decade later. जो भी कोल्ड वॉर का, देखो कोल्ड वॉर, तो व्हेन वी सी द tensions of Cold War, 1945 the tensions start rising, Berlin blockade, the tension increased, then under Dwight Eisenhower tensions remained as it is, then Suez Canal crisis, तो टेंशन ज्यादा बड़ी नहीं इसमें। Then the event which we can identify is this event is Cuban Missile Crisis. Then you'll see tensions went as it is, Israel and Egyptian issue. 1970s the tension eased, टेंशन काफी ईज हुई। दिस इज अंडर रिचर्ड निक्सन 1971 to 75, but then in 76 the tension started increasing and increased every day. This is 1980 Afghan invasion. It was in 1985 Mikhail Gorbachev that tension came back. हम यहां की बात कर रहे हैं 71 to 75, हाउ टेंशन ईज्ड। तो अब देखें कि यूएसए हैज जस्ट लॉस्ट द वियतनाम वॉर। वियतनाम वॉर में यूएसए हार गया, दे हैव लॉस्ट द वॉर, दे केम आउट ऑफ द वॉर विद अ ह्यूमिलिएटिंग रेड फेस। Next is Leonid Brezhnev. (63 to 82). Technically तो 82 है, वैसे 80 है, he was very old man. Leonid Brezhnev, someone who has toppled the regime of Nikita Khrushchev. तो Leonid Brezhnev came with a more totalitarian view inside the यूएसएसआर। यूएसआर को ज्यादा स्ट्रांगली कंट्रोल करने के लिए ब्रेजनेव केम, एंड ब्रेजनेव ऑल्सो केम व्हेन ख्रुश्चोव वाज नॉट वेरी असर्टिव ऑन इंटरनेशनल फ्रंट। ख्रुश्चोव इंटरनेशनल फ्रंट पे असर्टिव नहीं था बिफोर ब्रेजनेव, एज यू मस्ट बी अवेयर। तो लियोनिद ब्रेजनेव केम टुडे नॉट फीलिंग वेल, बट स्टिल आई मे एंड द क्लास after this question. So Brezhnev he came to assert the authority of USSR. 1963
John F. Kennedy died, he was replaced by Lyndon Johnson. Lyndon Johnson. 68. Lyndon Johnson. Lyndon Johnson's 5 years were more than busy in Vietnam. वो वियतनाम में बिजी रहे. कोल्ड वॉर वॉज ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट. जो भी थोड़ा बहुत अफ्रीकन कंट्रीज में, जैसे हेनरी किसिंजर कॉल्स अ सोवियत एम्बेसडर एंड सेज कि 20 years later we will even forget the name the organization we are funding. हम लोग जो एक दूसरे से लड़ने के लिए अफ्रीका में इनको सब जो भी छोटे छोटे एथनिक ग्रुप्स हैं, ट्राइब्स, इनको फंड कर रहे हैं, we will even forget their name. So there is no point funding them if we can find a solution. कोई आइडियोलॉजिकल ही सारी बात है, हम अपना सॉल्यूशन कर ले, फालतू में हम इनको पैसे दे रहे हैं. तो लिंडन जॉनसन वॉज बिजी इन वियतनाम. बस वो अफ्रीका में थोड़े बहुत जो फंडिंग चल रही थी. 68 to 73 was the time of निक्सन. निक्सन को प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए हराया था कैनेडी ने 60 में. निक्सन वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आइजनहावर एंड निक्सन लॉस्ट इन 60. बट 8 years later ही वन द प्रेसिडेंटशिप. एंड निक्सन का जो प्रॉमिस था इलेक्शन का वो यही था कि ही विल पुल यूएस आउट ऑफ वियतनाम. व्हेन यूएस वाज पुल्ड आउट ऑफ वियतनाम वॉर, अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी ऑफ निक्सन वाज ऑन द राइज. निक्सन की पॉपुलैरिटी राइज पर थी. एंड लियोनिद ब्रेजनेव ऑल्सो हैड हिज स्टेक्स बिकॉज यूएसएसआर's इकोनॉमी वाज फॉलिंग इन 70s में यूएसआर की इकोनॉमी, वो वाइब्रेंसी ऑफ 50s was not available now. USR was proving to be a falling economy. United States, its domestic environment was a sort of fed up from war. जैसे लिंडन जॉनसन का नाम था लिंडन बी जॉनसन, LBJ. तो in the elections of 1968 the slogan was LBJ, how many kids you killed today? How many kids you have sent into this war? तो as Britain was fed up after World War II कि भैया अब वॉर नहीं करने, एंड ऑफ दिस एम्पायर. आप एम्पायर बनाते हो, यू कॉन्कर इंडिया, यू कॉन्कर ऑस्ट्रेलिया, यू कॉन्कर अफ्रीका, यू कॉन्कर कैनेडा. आर चिल्ड्रन डाई इन दिस. वी डोंट नीड एनी एम्पायर. तो क्लेमेंट एटली हैड अंडरस्टूड दिस एस्पिरेशन ऑफ पीपल. Similarly, after Vietnam War, there was aspiration in United States that this Cold War, this World War, जब अपने बच्चे मरते हैं तो वॉर अच्छा नहीं लगता है. वर्ल्ड वॉर 1 और 2 तो यूएस ने सिर्फ फंड किया था, they did not really fought it. चाहे वो कितना भी आपको हॉलीवुड में बढ़ा चढ़ा के बताए. The casualties in civil war were much greater than World War 1 and 2 combined. तो बैटल ऑफ मिडवे और ये सब जो पर्ल हार्बर ये बताते हैं, इट इज अ वेरी पेरिफेरल इवेंट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर. बहुत ही पेरिफेरल इवेंट है, बहुत ही पेरिफेरल इवेंट, कोई इसका सेंस ही नहीं. ठीक है. व्हेन यू विल सी द यूरोपियन बैटल्स, तो इन 70s बोथ द कंट्रीज, इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ रशिया and political crisis of United States gave impetus to both the countries to find some solutions in Cold War. अब हुआ ये कि there was अच्छा वेस्ट जर्मनी जो था, वेस्ट जर्मनी, it has accepted East Germany as a state. In 1970, the decade of 1970, वेस्ट जर्मनी में कंसेप्ट आया ऑस्टपॉलिटिक. ऑस्टपॉलिटिक मींस फ्रेंडली पॉलिटिक्स. ऑस्ट का मतलब यहां से ईस्ट या साउथ वाला ऑस्ट नहीं, ऑस्टपॉलिटिक, फ्रेंडली पॉलिटिक्स, वेयर ईस्टर्न जर्मनी वाज एक्सेप्टेड एज ए स्टेट. ये हुआ, फेट इज सील्ड, बर्लिन वॉल भी बन चुकी है, तो फेट स्टेट मान लेते हैं ईस्ट जर्मनी. ईस्ट जर्मनी वाज एक्सेप्टेड एज स्टेट. दैट्स व्हाई यू विल सी इन द वर्ल्ड कप ऑफ 1974 वेस्ट एंड ईस्ट जर्मनी प्लेड अगेंस्ट ईच अदर. इन दोनों ने फुटबॉल मैच एक दूसरे के खिलाफ खेला था. एंड द 74 वर्ल्ड कप वाज वन बाय वेस्टर्न जर्मनी. वेस्टर्न जर्मनी ने उस वर्ल्ड कप को जीता भी था. सो देयरफॉर दिस ईस्ट टेंशन एंड बोथ कंट्रीज
अब ये कहते हैं बोथ कंट्रीज इवन टुडे, अब तो किसी का स्टेक नहीं तो दे मस्ट बी राइट, बोथ कंट्री क्लेम कि देयर वाज इंडिपेंडेंट पीपल हु मेट इन फिनलैंड हेलसिंकी। हेलसिंकी में वो मिले, रशियन एंड अमेरिकन। दे सेड दैट वी शुड टॉक समथिंग अबाउट पीस। दोनों ने कहा वी विल गो बैक टू आवर पॉलिटिशियंस, दे आर रिच पीपल, वी विल गो बैक टू आवर एम्बेसीज एंड विल आस्क इफ यू कैन टॉक। तो यह हुआ कि हेलसिंकी में दोनों कंट्रीज, both countries started talking each other and they discussed the SALT talks. It's called SALT, Strategic Arms Limitation Treaty. There are two SALT 1 and SALT 2. In the first half of 70s, both the countries came to Strategic Arm Limitation Treaty कि आर्म्स को लिमिट कर दिया जाए। In it is they will have START, Strategic क्या आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, START। तो 80s में मिखाइल गोर्बाचेव एंड कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, वेरी टायर्ड, मिखाइल गोर्बाचेव एंड रोनाल्ड रीगन, वो दोनों कम करने के लिए स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, स्टार्ट ट्रीटी। अभी 70s की ट्रीटी को कहते हैं सॉल्ट ट्रीटी, स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन, बढ़ाएंगे नहीं। दीज ट्रीटीज वर साइंड। There was a Soyuz project, a space project where American astronaut बोलते हैं, and Soviet cosmonauts, Soviet Union से cosmonaut, जैसे हम लोग अंतरिक्ष यात्री बोलते हैं, वैसे ही Soviet Union called them cosmonaut, US called them astronauts. So astronauts and cosmonauts, they both took a project and went to space together. This is called the Soyuz project for the technological exchanges. तो ये hope जग रही थी, there was a hope that the tensions of Cold War will come down. However, 73 में you must have heard Watergate issue. Richard Nixon has resigned. Came his deputy. Gerald Ford became the president. A person who never won election and was US president. वाइस प्रेसिडेंट थे तो इलेक्शन बन गए, प्रेसिडेंट बन गए 73 में, 76 लॉस्ट द इलेक्शन एंड जिमी कार्टर केम। तो द कार्टर रिजीम केम विद द प्रॉमिस। पहले तो कार्टर का शुरू में एम ये था, मैं आपको ज्यादा यूएस की इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं बता रहा हूं, द एम ऑफ कार्टर वाज फर्स्ट टू ईज द टेंशन। हाउएवर 75 यूएसएसआर हैज स्टक ऑयल इन साइबेरिया। आज जो व्लादिमीर पुतिन का पूरा पावर है, द एंटायर लेजिटिमेसी ऑफ और एंटायर पावर ऑफ व्लादिमीर पुतिन इज फ्रॉम दीज ऑयल रिजर्व्स। तो साइबेरियन ऑयल एंड गैस रिजर्व दे started in 75, the similar time when we have found our first hydrocarbon in Bombay High. जब हमें बॉम्बे हाई में मिला था उसके एक साल बाद यूएसआर गॉट आयरन एंड गैस, oil and gas in Siberia. So the economy of USSR starts rising. Second thing, Leonid Brezhnev was growing old and there was a reaction in Politburo. जो क्रेमलिन है, क्रेमलिन का पोलित ब्यूरो, there was a reaction against the Brezhnev's stance of capitalism. कि ये वही सेल आउट कम्युनिज्म फिर से चलने लगा. Brezhnev may have some pact with capitalism. So therefore, the resources and the internal politics of USSR made the stance of USSR hardening. Carter also took, अच्छा कार्टर वैसे तो बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे. The reason is, during Carter, there was the Iranian crisis. The regime of Shah Pahlavi, Shah Raza Pahlavi was toppled. Ayatollah Khomeini has took over Iran. Ayatollah Khomeini ने ईरान टेक ओवर कर लिया. Iran, which was not supported exactly by USSR, but a sort of problem for US in, or it will increase the power of USSR. अगर ईरान डिस्टेबलाइज रहेगा तो यूएसआर की पावर इंक्रीज होगी. देन वो तारकई की जो गवर्नमेंट थी इन टॉपलिंग द गवर्नमेंट ऑफ दाऊद, पहले किंग दाऊद थे, हिज गवर्नमेंट वाज टॉपल्ड बाय तारकई,
विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के जो किंग थे उनकी गवर्नमेंट को यूएसआर ने टॉपल करवा दिया विद हिज प्राइम मिनिस्टर। Later, the prime minister was murdered by his own junior and a coup took place. अब that prime minister was USSR appointed. So USSR has invaded Afghanistan. USSR ने अफगानिस्तान को invade किया. And when USSR has invaded Afghanistan, US has countered it. And US countered with the help of Ziaul Haq's Pakistan. When you will see Afghanistan, तो ये तो पूरा USSR है, ये ईरान है. Where you can got help from, आप अफगानिस्तान तक आर्म्स एमिनिशन कैसे ले जाएंगे? तो द ओनली वे इज वाया पाकिस्तान. सो यूएसए हैज काउंटर्ड यूएसएसआर इन अफगानिस्तान. लेटर यू विल सी अफ्रीकन टेंशंस दैट आल्सो इंक्रीज्ड. जो सोशलिज्म के खिलाफ सेंट्रल अमेरिका में द कॉन्ट्राज ऑफ अमेरिका, दे स्टार्टेड अटैकिंग द सोशलिस्ट रिजीम्स ऑफ सेंट्रल अमेरिका. And later you will see Ronald Reagan won the presidency on the promise that he will counter the Afghan threat, or he will counter, the USSR's threat. तो वो USSR की threat को counter करेंगे. This all has raised the tension बिल्कुल unimaginable heights. And Ronald Reagan has promised कि he will keep on increasing the height. It's only when Mikhail Gorbachev came with his glass-nosed perestroika and accepting that Eastern European countries have their own power, or the Cold War, Berlin Wall गिरी और Cold War जाके खत्म हुआ, that this Cold War has ended. एक last flickering light आई थी कि when 1991 Mikhail Gorbachev was kidnapped by Politburo. तो ये इसके लिए पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री हमें पढ़नी होगी. वी आर डिस्कसिंग अबाउट दीज एरियाज कि हाउ द टेंशन ईज्ड एंड लेटर हाउ द टेंशंस रीअपीयर्ड. ये एक तरह से कोल्ड वॉर का ग्राफ है. इसका पीक तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में ही आया था, आई बॉल टू आई बॉल, व्हेन वी आर नियरेस्ट टू परहैप्स अ न्यूक्लियर वॉर. ठीक है. सिक्स्थ क्वेश्चन, नंबर सिक्स्थ. एक तो season is changing and you are not feeling very healthy, and the fear of COVID-19 increases the tension. Communism, देखो this question, sixth question I have given willfully, keeping right wing in mind. Communism, a theory which revolutionized the political thinking forever, and an ideology which gives solution of all social ills, failed so miserably almost everywhere. Why communism failed? And my question is elaborate. So this question do not ask the ideological underpinnings. This question do not ask कि what you know about the theory of communism. Communism की थ्योरी का क्रिटिक नहीं करना है. You simply have to say why it's unworkable. ये वर्क क्यों नहीं करा? A long list of answers. इतना लंबा इसका आंसर हो सकता है कि it will become a never ending. देखिए, फर्स्ट सबसे बड़ी बात, communism was a theory developed in 19th century Europe. It do not account for the local system where it has to be implemented. 19th सेंचुरी यूरोप में अब आप कितना भी कहें कि ऑपरेशन सेम होता है, ऑपरेसिव सेम होता है, ऑपरेस्ड भी सेम होता है और इट इज ऑल रेलिवेंट, इट्स नॉट. देयर आर सम लोकल फैक्टर्स. जैसे आप इंडिया में देखें तो देयर इज अ क्लास आइडेंटिटी विच कम्युनिस्ट थिंक देयर एग्जिस्ट. एक क्लास आइडेंटिटी होती है. देन देयर इज अ कास्ट आइडेंटिटी. देन देयर इज रिलीजियस आइडेंटिटी विच इज नॉट कास्ट आइडेंटिटी. कास्ट और रिलीजियस आइडेंटिटी सेम नहीं है.
तो क्लास आइडेंटिटी भी है, कास्ट आइडेंटिटी भी है, रिलीजियस आइडेंटिटी भी है, देन देयर इज लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी. नाउ रिड्यूस इट टू सिंपली bourgeois वर्सेस प्रोलेटेरिएट इज नॉट गोइंग टू वर्क. You have to understand the various other avenues of operation. So first thing, it's a ideology which was made in some other environment and has to be applied in some other environment, but without change it's not possible. Second thing, communism being too academic, इतना एकेडमिक है, और इट वॉज मेड सो एकेडमिक दैट इट रेयरली गेट द इंटरेस्ट ऑफ पीपल व्हेन इट हैज टू बी अप्लाइड. जैसे यहां पे हम कम्युनिज्म के बारे में जैसे एक ये है कि इट वॉज आस्क्ड टू अ पुअर पर्सन कि शुड अ रिच डिस्ट्रीब्यूट हिज कार, तो ही सेड यस. दिस शुड बी डन, तो बोला यस. ट्रैक्टर, तो बोला वो भी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए. उससे पूछा कि अपनी गाय का दूध बांटोगे, तो उसने कहा एक ही गाय है वो भी बांट दें. तो इट मीन्स कि व्हेन यू विल लिसन इट और व्हेन यू विल टेल समवन विदाउट द एकेडमिक्स ऑफ इट, द वन हु हैज टू ब्रिंग रिफॉर्म विल नॉट ब्रिंग. मतलब यह है कि जिसके पास डिस्ट्रीब्यूट करने की पावर नहीं है वो तो एग्री कर जाता है, जिससे लेना है वो एग्री नहीं करता है. दे आर ऑलवेज अगेंस्ट कम्युनिज्म. सो कम्युनिज्म वॉज मेड टू एकेडमिक. इसको बहुत एकेडमिक बना दिया गया. आई होप आई एम एबल टू कन्वे व्हाट आई वांट टू. थर्ड, देखो व्हाट इज मार्केट. मार्केट इज समथिंग विच रन्स ऑन डिमांड एंड सप्लाई. दिस इज सप्लाई एंड दिस इज डिमांड. ये वो ऐसे भी आपने इस ग्राफ को अक्सर देखा होगा, डिमांड एंड सप्लाई. दिस इज डिमांड एंड दिस इज सप्लाई. असल में ग्राफ बनता है लाइक दिस. सप्लाई इज अ बिट डिफरेंट, ठीक है. डिमांड एंड सप्लाई. नाउ व्हाट कम्युनिज्म डू, इट इज अगेंस्ट द कंसेप्ट ऑफ मार्केट, डायरेक्टेड एंड प्लान्ड इकोनॉमी. तो इन द एब्सेंस ऑफ मार्केट, what people want, at what price they want, everything is rejected. जैसे who told cassette companies to stop producing cassette and start producing CDs? किसने बताया कैसेट कंपनी को कि कैसेट प्रोड्यूस करना बंद करें? तो मार्केट टोल्ड देम. When people stopped demanding cassettes, people started demanding CDs, so they moved to CDs. Then one day people stopped demanding CDs and a new USB came, तो CD भी खत्म हो गई. तो market gives you indication what to produce, what not. अब communism में when everything is controlled by government, तो people want something else and something else is being produced. लोगों को कुछ और चाहिए, कुछ और प्रोड्यूस होता है. For example, रेलवेज इज गवर्नमेंट कंट्रोल. हमें पता ही नहीं, कभी मार्केट ने बताया ही नहीं इंडियन रेलवे को कि डू पीपल वांट बेटर टॉयलेट एट द कॉस्ट ऑफ एसी, या थोड़ा बहुत जो मार्केट बताता भी है एसी 3 में ज्यादा टिकट हो गए, बट दैट इज नॉट एक्नॉलेज्ड बाय रेलवे. इफ रेलवे इज ओपन टू प्राइवेट प्लेयर, तो दोज रेलवे स्टेशन विच हैव बेटर टॉयलेट फैसिलिटीज, वहां पे ज्यादा फुटफॉल होगा. तो एवरी ट्रेन विल वांट टू हैव द स्टॉपेज देयर इफ ट्रेन्स आर आल्सो प्राइवेट. तो ट्रेन्स उन्हीं स्टॉप पे ज्यादा देर रुकेंगी जहां पे बेहतर टॉयलेट है, बेहतर एमिनिटीज है. तो व्हेन यू कनेक्ट समथिंग विद मार्केट, तो मार्केट गिव्स यू फीडबैक एंड दैट मेक द प्रोडक्शन ऑन द लाइंस विद व्हाट पीपल कंज्यूम. तो कंट्री में अनरेस्ट नहीं फैलता है. जैसे यूएसएसआर in 1992 when McDonald's was allowed in USSR, so you can still see on internet the photos where McDonald's balloon is rising and there is 2 kilometer long queue where people are in line to eat in McDonald's. उसका कारण यह 40, 50, 60 साल तक
ये माना ही नहीं गया कि पीपल वांट सम कंज्यूमर गुड्स तो बैड ही माने गए. सो दिस डिटैचमेंट फ्रॉम मार्केट मेक्स प्रोडक्शन अनवांटेड एंड इनएफिशिएंट. लोगों को चाहिए कुछ और गवर्नमेंट बनवा रही है कुछ और. फोर्थ, over the years, for more than 1.5 century, communism has detached itself from democracy. Communism ने अपने आप को डेमोक्रेसी से डिटैच कर लिया. And therefore, communism became such a ideological approach or ideological philosophy that was thought that people will not understand it. So first they need to be disciplined, first the system need to be imposed on them. अब कम्युनिज्म कितनी भी बात करे इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी की, बट एनी अदर विजन, एनी अदर एकोमोडेशन, एनी अदर सिस्टम इज नेवर एकोमोडेटेड. अब डेमोक्रेसी होगी तो पीपल कोई कहेगा कैपिटलिज्म आना चाहिए, कोई नहीं आना चाहिए. कम्युनिज्म डू नॉट टॉलरेट सच थिंग. तो कम्युनिज्म बिकम सो मिलिटरिस्टिक या कह ले सो डिसिप्लिन्ड दैट डेमोक्रेसी से इसका स्प्लिट हो गया. देयर वॉज अ टाइम इन 19th century इट वॉज थॉट दैट सोशलिज्म विल कम विद डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म आर सिस्टर आइडियोलॉजी. बट इतना आइडियोलॉजिकल, इतना इंपोजिव नेचर हुआ कि पूरी इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करना पड़ा. पीपल विल नॉट एक्सेप्ट इट. तो व्हेन दे विल नॉट एक्सेप्ट इट, तो इंस्टेड ऑफ communism changing itself, it hoped people to change itself. Communism is against the psychology of humans, something like greed and profit. Instead of accommodating them for natural good, communism completely rejects it. ये तो चीज ही गलत है. तो ग्रीड और प्रॉफिट को एकोमोडेट करने से बेहतर यह है कि इसको रिजेक्ट कर दिया कम्युनिज्म ने. एंड व्हेन कम्युनिज्म हैज रिजेक्टेड इट, those who are wanting to earn profit, those who are greedy, greed का मतलब यहां पे ह्यूमन नॉर्मल ग्रीड से, वो एकदम बिल्कुल वैसा वाला लालच नहीं कि चोरी करके लालच. Sixth is last point, feeling very comfortable, so I'll end. Sixth point is that when communism was against wealth creation, वेल्थ क्रिएशन का मतलब यह है कि व्हेन यू विल अर्न प्रॉफिट देन यू विल क्रिएट मोर वेल्थ. तो लाइसेंस, कोटा सिस्टम, इफ देयर इज सम मिक्स्ड इंडस्ट्री में कोई प्राइवेट इंडस्ट्री होती है तो उस पर भी रिस्ट्रिक्शन रखी जाती है. सो ड्यू टू दिस पुअर वेल्थ क्रिएशन, इनएफिशिएंट वेल्थ क्रिएशन, कमांड इकोनॉमी में होता यह है कि अ टारगेट इज गिवन एंड रिसोर्सेज आर पम्प्ड इनटू द टारगेट. तो मोस्ट एफिशिएंट कंप्लीट देयर टारगेट इन द मोस्ट डिलेड फॉर्म. भाई दो चीजें, रेलवेज है और रोडवेज है. अब कम्युनिज्म इज कमांड इकोनॉमी, तो कहेगा वी हैव टू क्रिएट 10 किलोमीटर्स ऑफ रेल लाइन. अब रेल लाइन अगर इनएफिशिएंट है तो वो 4 साल में बनेगी एंड द मनी विल बी पम्प्ड इनटू इट, क्योंकि 10 किलोमीटर की रेल लाइन बनानी है, उसको रिजेक्ट करते नहीं है. देयरफॉर इन कमांड इकोनॉमी द मोस्ट इनएफिशिएंट गेट द मैक्सिमम रेवेन्यू. वो उतना डीले होता जाता है और उतना उसको बजट एलोकेट करते रहते हैं. वेयर एज इन कैपिटलिज्म द मोस्ट एफिशिएंट गेट द मैक्सिमम रेवेन्यू. जो एफिशिएंट होता है उसको प्रॉफिट्स मिलते हैं, वो कंपनी और डेवलप होती है, बढ़ती है. सो देयरफॉर वेल्थ क्रिएशन इन कम्युनिज्म इज वेरी पुअर. उससे होता है कि विद इन 30 और 40 years द नेबरिंग इकोनॉमीज ग्रोज सो मच that difference between a communist state and a capitalist state becomes so stark, इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है कि all the communist people want to run into the capitalist state. आप देख लें नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, वेस्ट यूरोप, ईस्ट यूरोप, no matter what someone tells you, but the level of wealth creation is so different कि आप कितनी भी आइडियोलॉजिकल बात करें, वहां लोग पीस में रहते हैं, ट्रैंक्विलिटी में रहते हैं. That is because there is poor wealth, there is poor competition. That's why the wealth creation of communism is so poor that capitalist country with its own pace, अपनी धीरे धीरे खुद कैपिटलिस्ट कंट्री का जो पेस होता है वो सक्सेस लगने लगता है.
और कम्युनिज्म का वो फेलियर लगने लगता है स्टेट. सो दीज आर द रीजंस दैट कम्युनिज्म फेल्ड एवरीवेयर. नेक्स्ट क्लास होपफुली विल हैव मॉडर्न इंडिया. थैंक्स. दीज आर द 6 क्वेश्चंस. कोई डाउट हो तो आगे भी convey your doubt. Thanks for the class.